This conference will now be recorded. ओके राइट फ्रेश हो जाता है थोड़ा। क्योंकि मतलब ऐसे भी पूरा दिन स्ट्रेसफुल रहता ही है प्रोफेशंस के लिए, कुछ ना कुछ टेक्निकल चलता रहता है, तो एटलीस्ट जरूरी नहीं है कि भाई आप एक कोर टेक्निकल टॉपिक को भी टेक्निकली डील करो। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपने एक्लेमेटाइजेशन कर लिया और फिर तो आई थिंक फन एंड लर्निंग दोनों साथ साथ होनी चाहिए। दैट्स राइट। हाँ वो यस सर। वार्म अप सेशन बोलते हैं, जैसे योगा में बोलते हैं ना, वार्म अप सेशन है पहले का 5 मिनट। नहीं नहीं, जरूरी है जरूरी है। अशोक जी अब चालू कर लीजिए। हाँ हाँ। So, good morning everyone. I see Ashok Jain feel privileged to welcome you all at the second meeting of BFSI CM Study Group of WIRC of ICAI for the year 2021-22. BFSI CM stands for Banking, Financial Services, Insurance and Capital Market. All the members of this group are experts, chartered accountant from the BFSI CM fields. Every month we have one meeting, which is generally on fourth Saturday of the month, whereby we invite some expert to deliberate on the interesting topic relating to BFSI CM field. Today we have with us Sri Rajat Bedji, the founding partner of Srijan Alpha Capital Advisors LLP, who is going to talk on the topic unlock value and capital raising via equity markets, listed and unlisted companies. Now I will request our other core member of the group, CA BL Maheshwari ji, to give introduction of Sri Rajat ji Bed. Maheshwari ji. Good morning, friends. It's my pleasure to introduce today's learned speaker, Sri Rajat Bedji. We are fortunate to have a very learned faculty today. He is a qualified company secretary. Friends, somebody is having background noise. Can you mute, please? I'll request everyone to just mute their mic. मिश्रा जी सबको म्यूट कर लीजिए। हाँ He is हाँ a, Maheshwari ji. आई थिंक माहेश्वरी जी भी म्यूट पे हैं, वो उनको अनम्यूट करना पड़ेगा शायद। मिश्रा जी ने म्यूट किया तो सब म्यूट हो गए। हाँ माहेश्वरी जी अनम्यूट करके वापस जरा बोल दीजिए। yeah, is it okay now? हाँ वापस एक बार शुरू से। Yeah. So we have the learned faculty today, and I have a great pleasure introducing him briefly. At a very young age, he has been having very interesting career journey. He started after qualifying as a company secretary, further done his MBA from IIM Kolkata and MBA from US University. After that, he has started working with the two of the investment bankers, and now he has started his journey with his own firm called Surgeon Alpha Capital Advisors, where he is a founding partner. He has 12 years of rich experience in investment banking, raising the funds and advising various clients. Apart from that, he has been a regular speaker on capital market subjects across India, and we have in our institute also has invited him earlier also, and today also we are fortunate to have him and share his thoughts with us. We all know that the flavor for the current time is the equity. Everybody has seen the stress in banks, and after that all the promoters are today resorting either for unlocking the value or for raising the money by way of equity. The topic is known to all of us. I am thankful to the BFSI committee members and Sri Ashok Ji Jain for having a very live topic for the today. And now I request Rajat Ji Bed to please enlighten us. No, thank you Maheshwari ji for nice introduction of today's speaker.
So friends, as you know that COVID-19 and lockdown, etc., has shown us the worst time of our, you can say, life, where we were all forced to stay at home. Our work was stopped, everything was stopped, and it resulted in stopping of our earning. So that time we realized that our earning is stopped, but the other side, the salary and the interest cost continued. It was a very difficult time. So now the question arises that time and now also, that how to survive such time, how to mitigate the cost, how to, I mean, the interest cost to reduce, how to do. So that was a very difficult, I mean, you can say challenge for all of us. So that time we realized that if we want to reduce the interest cost, we should have some means by which we can raise the capital. As far as we all are concerned, we have limitation as far as putting our capital into the business. So then the best option is to raise equity capital, and that also how an unlisted company raise equity capital is a very tough task. So when we sell, so from their angle, we have today that most important to fetch proper way. When we talk about the selling of share or unlocking the value, the most important task is to how to value our stocks, how to value our how to unlock the proper value. So that is not an easy task, because it is, as we know, friends, that the thing is that how you launch yourself, that is the most important thing in life. So to raise the capital and unlock the value, we need the advice of the experts. As we have seen in recent time, that Zomato, which is still running in loss, they've raised capital at a very high premium. So from that angle, to learn that and to understand that, we have invited today's expert, Sri Rajatji Beth. Now I'll request Rajatji to start with his presentation and enlighten us with all his wisdom. Thank you, Rajatji. Thank you very much, Ashok ji, Maheshwar ji, and all the esteemed members of the WIRC and specifically the BFSI committee. So first of all, I'm really delighted. मतलब आप सभी इतने senior professionals हैं, and I'm too young age से भी, experience से भी, but it is so humble of you to acknowledge and kind of say so good for a young person who is much younger in terms of profession or in terms of age. So really humbled, and I thank you, thanks Ashok ji and the BFSI committee for giving us the opportunity to kind of share some limited knowledge that we have, of course, because you all have been across your career done multiple things. Is just as a matter of luck or by God's wish that I have been 12 years into the capital market. So हो सकता है मुझे taxation पे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता हो या पर्सनल फाइनेंस में नहीं आता हो, बट ठीक है 10 साल कैपिटल मार्केट में काम किया, अक्रॉस इंडिया ट्रैवल किया, 2-2,500 प्रमोटर से 2-3,000 प्रोफेशनल से मुलाकात हुई, approximately 55-60 IPOs manage करे, तो that has kind of given me something as a material to stand in front of the learned professionals like you all and share some piece of knowledge. So really thankful to everybody. And very quickly, जैसे अशोक जी ने बताया कि I'm one of the founding partner of Srajan Alpha Capital Advisors. एसएस में पब्लिक फोरम्स पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, बट जस्ट टू गिव एन इंट्रोडक्शन, वी आर ए कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर. मैं करीब 10-12 साल तक मर्चेंट बैंकिंग लाइन में रहा, और पिछले साल समथिंग अराउंड February I decided to come out of my corporate role and start of my own, and with grace of God we were able to get SEBI's license for merchant banking. And right now we are focusing on two larger aspects. One aspect remains taking companies to public, जहाँ पे companies पब्लिक इशू मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहती हैं, उन कंपनीज को एक हैंड होल्डिंग देना कि किस तरह से कैपिटल मार्केट को अप्रोच करें, हाउ टू सेट दी प्रोसेस एंड सिस्टम्स व्हिच कैन एक्चुअली हेल्प देम डिलीवर वैल्यू व्हेन दे हिट द पब्लिक मार्केट. बिकॉज लार्जली जैसे आप सभी प्रोफेशनल्स हैं, वैसे ही मैंने भी अपने प्रोफेशनल करियर में रिकॉग्नाइज किया कि कंपनीज पब्लिक इशू को बहुत ही एक ट्रांजैक्शनल माइंडसेट से देखती हैं. सो वन फाइन डे दे रियलाइज दैट वी कांट फर्दर बोरो डेट and we do want to explore the equity opportunity. So ultimately the first decision would be let's go to Bombay and meet some merchant bankers. उनसे बात करते हैं वो क्या बोल रहे हैं, क्या वैल्यूएशन दे रहे हैं, और पूरा डिस्कशन then it will be revolving around
कि कौन सा मर्चेंट बैंकर हमको सबसे ज्यादा वैल्यूएशन दे रहा है और सबसे कम कॉस्ट दे रहा है. सो दैट इज हाउ एक्चुअली द सिलेक्शन हैपन्स. और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मर्चेंट बैंकर इज जस्ट इंटरमीडियरी. अल्टीमेटली कंपनी अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करती है, क्या वो अपनी इंडस्ट्री के चैलेंजेस को ठीक से बता पाती है, क्या उन चैलेंजेस के ऊपर उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, ग्रोथ का क्या प्लान है, उसको वो ठीक से समझा पाती है. हाउ दिस कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनीज इन द सेम स्पेस, व्हाट दे आर डूइंग डिफरेंट, उनका ग्रोथ प्लान क्या है. अगर ये वो ठीक से समझा पाए तो हो सकता है एक सेम सेक्टर की सेम साइज की कंपनी 20 की जगह 30 टाइम्स का मल्टीपल ले सके और उसका आईपीओ लार्जली बेटर रेस्पॉन्स मीट करे, मर्चेंट बैंकर्स भी उसको काफी कॉन्फिडेंटली मैनेज करे. सो आई थिंक दैट्स वेयर वी रियलाइज कि प्रोफेशनल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी को आईपीओ के लिए रेडी करने में, rather than company looking at a IPO as a transactional process. यार ये तो सिर्फ एक प्रोसेस है, 3 4 5 6 महीने में कंप्लीट करना है, पैसा रेज करना है. इट शुड बी सीन कि ये कुछ ऐसा है जिसके लिए हमको पहले 6-7 महीने पहले तैयारी करनी पड़ेगी. देन कम्स द फेज ऑफ मीटिंग द मर्चेंट बैंकर, explaining about their requirements, and then most probably the discussion gets converted into a transaction. So largely उसी process के अंदर we are trying to help few companies for exploring the capital market. And second opportunity remains, the second offering of our firm remains guiding the listed companies wherever we feel that वहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस वैल्यू का गैप है, कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है बट समहाउ इन्वेस्टर्स की नजर इस कंपनी पे नहीं है. सो हम ऐसी कुछ कंपनीज को इन्वेस्टर के पास लेके जाते हैं, उनके साथ में डीपली एंगेज करते हैं कंपनी के साथ में, और इन्वेस्टमेंट थीसिस सेट करके उस इन्वेस्टमेंट थीसिस को हम प्रेजेंट करते हैं इन्वेस्टर्स के साथ में, और कोशिश रहती है प्लेसमेंट मोबिलाइज करने की. अभी पिछले करीब 1 साल के पीरियड में हमने 2 कंपनीज में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स किए. एक स्मॉल कैप कंपनी है जयपुर बेस्ड, उसके साथ में हमने पिछले 1 साल में 2 प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स कंप्लीट किए. अभी पिछले 2 हफ्ते पहले एक अच्छे मार्की इन्वेस्टर ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, और 2 कंपनीज है जहाँ प्लेसमेंट का काम चल रहा है. सो लार्जली इन सब बैकग्राउंडर से मैंने ये रियलाइज किया कि आज इस फोरम पे प्रोफेशन से क्या बात की जाए. महेश्वरी साहब ने बताया कि डेट के ऊपर जब इतनी आई वुड से कर्टेलिंग हो गई, डेट रियली बिकेम अ पॉइंट ऑफ स्ट्रेस. मैंने प्रमोटर्स देखे हैं जो पहले अपने कलकत्ता में बैठे हैं और वो अपने बैंक की ब्रांच में भी नहीं गए, और अभी वही प्रमोटर्स 10 करोड़ रुपए की सीसी को सैंक्शन करवाने के लिए बॉम्बे हेड ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, बीकेसी में एसबीआई के ब्रांच में जा रहे हैं. सो आई थिंक डेट के अंदर जो एक ओवरहैंग था, कहीं ना कहीं उसी ने लोगों को एक डायरेक्शन दिया है कि इक्विटी की तरफ सोचिए कॉर्पोरेट लेवल पे, हमारे क्लाइंट्स के लेवल पे. तो आई थिंक माहेश्वरी जी की काफी रेलिवेंट बात लगी मुझे कि किस तरह से कंपनीज अपने आप को हरदम इक्विटी की तरफ ओरिएंटेशन बनाए रखें, ताकि ऐसा नहीं हो कि जब मार्केट तेज है तब एकदम से ट्रांजैक्शन के बारे में सोचा जाए. हो सकता है ट्रांजैक्शन तब हो बट उनकी तैयारी लंबी होनी चाहिए. और इस पूरे प्रोसेस में मैंने जब बार बार इसके बारे में विवेचन किया, मैंने उसको सेल्फ थॉट दिया, देन आई रियलाइज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रिमेन्स ऑफ द प्रोफेशनल्स, largely the chartered accountant and the company secretary professionals who are associated with the company. अगर हम अपने क्लाइंट्स को एक लार्जर ओरिएंटेशन पे गाइड कर सके दैट हाउ यू शुड अप्रोच द कैपिटल मार्केट्स, एंड कैपिटल मार्केट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, यू हैव टू बी रेडी फॉर इट ओवर अ पीरियड. एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी अगर हम इस तरह से थोड़ा सा ओरिएंटेशन दे सके, मैं शेयर कर सकूं कि कैसे आप अपने क्लाइंट को किस किस ऑप्शंस के ऊपर इक्विटी के लिए गाइड करें, ओरिएंटेशन कैसे सेट करें, तो हो सकता है वो क्लाइंट ultimately comes out with a very wonderful transaction, which is a win-win situation for all the stakeholders, including the professional. Hence, I came out with this thought process. अशोक जी से मैंने बात करी कि किस तरह से सेशन को अपन यूजफुल बना सकते हैं, and that's where we thought कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें. एक तो अपन Can I request म्यूट कर देंगे सबको. इतना हाँ राजा जी. हाँ राइट. सो आई थिंक वहीं पे हमने सेशन की जो थीम सेट करी वो 2 पार्ट्स में हमने सेशन को डिवाइड किया. एक पार्ट हम बात करना चाह रहे थे कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो किस तरह से फंड रेजिंग के टूल्स एंड टेक्निक्स अपना सकती है, क्या क्या मेथड्स अवेलेबल है कि लिस्टेड कंपनी को पैसा रेज करने के लिए. और उससे पहले जो कंपनीज अनलिस्टेड है, अभी तक उन्होंने कैपिटल मार्केट में कदम नहीं रखा है, उनके पास कौन कौन से टूल्स हैं. लार्जली टूल के नाम पे तो सिर्फ उनके पास आईपीओ ही एक टूल है, बट आईपीओ कौन कौन से प्लेटफॉर्म को वो एक्सप्लोर कर सकती हैं, क्योंकि पिछले 5-6 साल में रेगुलेटर्स ने काफी प्लेटफॉर्म क्रिएट करे हैं जहाँ पे अनलिस्टेड कंपनी इक्विटी एक्सप्लोरेशन कर सकती है, इक्विटी रेजिंग कर सकती है. तो सेशन के 2 पार्ट्स मैंने रखे हैं एकेडमिकली. एक पार्ट है अनलिस्टेड कंपनीज किस तरह से इक्विटी रेज कर सकती है,
Mishra ji, can you please mute? Mishra ji, will you mute everyone? Mishra ji? थैंक यू मिश्रा जी। सो आई थिंक इसमें पहला पार्ट तो मैंने रखा है सेशन में कि किस तरह से एक अनलिस्टेड कंपनी अप्रोच कर सकती है कैपिटल मार्केट को। दूसरा पार्ट रखा है किस तरह से लिस्टेड कंपनी अप्रोच कर सकती है। तीसरा मैंने एक पॉइंट क्रिएट करने की कोशिश की है जो कि शायद हमारे सारे प्रोफेशनल्स के लिए रेलिवेंट है कि जब एक कंपनी इक्विटी मार्केट्स को अप्रोच करती है तो इन्वेस्टर्स उसको किस नज़र से देखते हैं, या फिर अगर मैं खुद भी एज ए प्रोफेशनल एक इन्वेस्टर की नज़र से किसी कंपनी को एग्जामिन कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, तो मुझे कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए। लार्जली ये दोनों ही तरह से रेलिवेंट है, एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैपेसिटी ऑल्सो एंड ऑल्सो एज ए प्रोफेशनल, कि मैं कंपनी को किस एवेन्यूज पे गाइड करूं कि इन्वेस्टर्स अल्टीमेटली क्या देखेंगे। क्योंकि मेजोरिटी केसेस के अंदर ना कंपनी को पता होता है ना ही प्रोफेशनल्स को गाइड कर पाते हैं कि इन्वेस्टर का परसेप्शन क्या है। लार्जली वो प्रोसेस को मर्चेंट बैंकर के हवाले कर देती है और मर्चेंट बैंकर जैसे उस शो को ड्राइव करता है या जैसे उस जर्नी को ड्राइव करता है वो कंपनी बस उसके पीछे पीछे चल देती है। तो मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी प्रोफेशनल्स के लिए कि कंपनी को इन्वेस्टर परसेप्शन से कैसे रेडी करें। यहाँ पे लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों कंपनीज ही कवर हो जाती है। फिर मैंने एक सेक्शन क्रिएट करा है जहाँ पे प्रोफेशनल किस तरह से इस पूरे जर्नी में अपना रोल क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अभी लार्जली मर्चेंट बैंकिंग एक थोड़ा सा सेक्रोसेंट बिजनेस देखा जाता है, जबकि मतलब फ्रैंकली मैंने 10 साल मर्चेंट बैंकिंग की है, मैं अभी भी एक मर्चेंट बैंकिंग में फाउंडिंग पार्टनर हूँ। अदर देन दी सेबी लाइसेंस पर से ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक प्रोफेशनल एडवाइस नहीं कर सकता। या सो फॉर अल्टीमेटली फाइलिंग अ ट्रांजैक्शन विद सेबी you have to be a merchant banker, but on the advisory level chartered accountants are well and very well capable of delivering whatever a merchant banker does, subject to that they develop that orientation कि हमको कंपनी को डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में गाइड करना है। सो आई हैव अनदर सेक्शन इन माय प्रेजेंटेशन जहाँ पे एक प्रोफेशनल किस तरह से आईपीओ के 3 फेजेस में, आईपीओ से पहले, आईपीओ के दौरान और आईपीओ के बाद में एडवाइजरी दे सकता है अपने क्लाइंट्स को कैपिटल मार्केट अप्रोच करने के लिए। सो आई थिंक ये सेक्शन मुझे लगा कि अशोक जी ने जैसा इनपुट दिया था उस अकॉर्डिंग रेलिवेंट होना चाहिए सभी के लिए। और फिफ्थ मैंने थोड़ा सा, जैसे भगीरा साहब ने बोला कि वो फ्लेवर ऑफ द सीजन है, तो आई थिंक इक्विटी मार्केट्स किस तरह से भी परफॉर्म कर रहे हैं, आईपीओ का लैंडस्केप क्या है, आने वाले समय में कौन से सेक्टर्स हमको लगते हैं कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये सब चीजें मैंने कुछ एक डेटा एनालिसिस तौर पे रखी है। So I think once Ashok ji gives a go ahead कि we should start with the session, I'll go ahead. और yeah, you can go ahead. और आई थिंक किसी भी फेलो मेंबर को कोई भी क्वेरी हो, कंसर्न हो, प्लीज फील फ्री टू स्टॉप मी एंड गेट दैट क्लैरिफिकेशन डन। और अगर अशोक जी बोले तो वी कैन कीप इट एट द एंड ऑफ द सेशन, हाउएवर एवरीबॉडी इज at the end of the session. ठीक है, फेयर इनफ। तो आई थिंक मेरे टीम से दीप भी यहाँ मौजूद है, मैं उसको भी एक्नॉलेज करूंगा उसकी प्रेजेंस। अशोक जी से तो उसकी बातचीत हुई है। दीप इज आल्सो अ पोटेंशियल फेलो मेंबर ऑफ WIRC, उन्होंने फाइनल एग्जाम दिया है एंड इज अवेटिंग हिज रिजल्ट्स। तो आई थिंक उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे सीनियर लोगों से मुलाकात करना। राइट, सो आई थिंक I'll come ahead and start with the part. So largely हम ये देख रहे हैं, आई होप प्रेजेंटेशन अशोक जी विजिबल है सभी को। Yes, yes. ओके, परफेक्ट। सो आई थिंक सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम किसी कंपनी को अगर एडवाइस कर रहे हैं एज ए प्रोफेशनल, तो उसके कौन से ग्रोथ फेज के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म रेलिवेंट है। आज से 5-6 साल पहले ये इतना रेलिवेंट नहीं था पॉइंट, क्योंकि लार्जली एक्सचेंज के तौर पे सिर्फ एक ही एक्सचेंज इंडिया में अवेलेबल था, विच वाज द मेन बोर्ड ऑफ BSE NSE। OTCI और रीजनल स्टॉक एक्सचेंज ऑलरेडी बंद हो चुके थे, बट सेबी ने जो रिफॉर्म्स लेके आया उसके चलते अब हमारे पास ऑप्शंस हैं कि एक लिस्टेड कंपनी अलग अलग ग्रोथ फेज में किस किस प्लेटफॉर्म को अप्रोच कर सकती है, और लिस्ट होने के बाद उसके क्या पास डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स है फंड रेजिंग की। तो जैसा इस चार्ट में विजिबल है, अनलिस्टेड कंपनी अगर अपने ग्रोथ फेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करे, एक इनिशियल ग्रोथ फेज जब वो उसने अपनी जर्नी शुरुआत ही करी है, उस समय उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो BSE के IGP प्लेटफॉर्म जो कि इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म बनाया है BSE ने, उसको अप्रोच कर सकती है, या फिर वो स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को अप्रोच कर सकती है। कंपनी थोड़ी और मैच्योर होती है, उसका साइज स्टेबल होता है, प्रॉफिट्स और नंबर्स रेवेन्यू के क्या होते हैं उस पर आगे आऊंगा, बट एक ग्रोथ फेज की कंपनी SME प्लेटफॉर्म्स को अप्रोच कर सकती है जो कि BSE और NSE दोनों पे मौजूद हैं। और जब एक कंपनी ग्रोथ फेज से निकल के एक मैच्योर ग्रोथ फेज में आती है, जहां से वो प्रिडिक्टेबली 15 से 20% की ग्रोथ रेट आने वाले 5 से 6 साल में डिलीवर कर सकती है, तो वो मेन बोर्ड को अप्रोच कर सकती है। SME से मेन बोर्ड पे एक माइग्रेशन का रूट भी अवेलेबल है, जहां पे कंपनी SME पे लिस्ट होकर सीधे मेन बोर्ड पे माइग्रेट कर सकती है।
और उसके बाद में जब कंपनी एक बार लिस्टेड हो जाती है तो लिस्टेड होने के बाद उसके पास में राइट्स इशू के तौर पे, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के तौर पे या इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स के तौर पे क्या टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल है वो इस चार्ट के अंदर आई होप हमने बताने की कोशिश की है। अब हम एक बार सबसे पहले आते हैं कि एक अनलिस्टेड कंपनी किन टूल्स टेक्निक्स और प्लेटफॉर्म को अप्रोच कर सकती है इक्विटी कैपिटल मार्केट्स में एंट्री करने के लिए। सो एज ए डेफिनेशन आई थिंक ये तो बहुत सिंपल है कि आईपीओ क्या है। लार्जली कोई भी ऐसी कंपनी जो फर्स्ट टाइम अपना स्टॉक ऑफर कर रही है, बट लार्जली जो अंडरलाइंग फैक्टर है वो है पब्लिक एट अ लार्ज। हो सकता है कंपनी ने पहले 20-25 लोगों को शेयर्स इक्विटी इशू करे हों, बट वो एक क्लोज प्लेसमेंट था, उसमें पब्लिक एट लार्ज पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। तो डिस्टिंक्टिव फैक्टर इज कि जब भी एक कंपनी एट ए लार्ज पब्लिक को इन्वाइट करे सब्सक्रिप्शन के लिए, वो पब्लिक इशू एज ए टर्मिनोलॉजी कहते हैं। तो लार्जली हर कंट्री में, हर इकोनॉमी में, हर रेगुलेटर आईपीओ को अलग अलग डिफरेंशिएट करता है, बट लार्जली एकेडमिकली अगर मैं, मेरे से कभी कोई प्रमोटर बोलता है या किसी में सेशन पे बात करता हूँ, तो आई ऑलवेज से जब पब्लिक को आप एट ए लार्ज इन्वाइट करो, दैट एवरीबडी कैन कम एंड सब्सक्राइब शेयर, वेदर इट्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, whether it's a HNI investor or it's a retail investor, that should be termed as a public issue. Going ahead, public issue की जरूरत क्या है? I think ये चार्ट ऑलरेडी महेश्वरी जी ने कवर कर लिया, बट स्टिल आई विल टेक अ मिनट। लार्जली कंपनीज स्टार्ट होती है इनकॉर्पोरेशन के लेवल पे, उनके खुद के प्रमोटर्स के कंट्रीब्यूशन से, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ बोरोइंग्स करते हैं। अगला एक्सपेंशन इंडिया में रफली 99% कंपनीज बैंक फंडिंग की थ्रू ही करती हैं, लिविंग असाइड द स्टार्टअप इकोसिस्टम। बैंक फंडिंग एक कोलेटरल ड्रिवन मॉडल है, जहां पे हर एडिशनल फंडिंग के साथ में आपको कोलेटरल की जरूरत है और उसके साथ एक फिक्स कॉस्ट भी एसोसिएटेड है। सो या तो आपका बिजनेस का मॉडल इस तरह से हो कि उसके अंदर हाई कैश फ्लो जनरेट होते हो कि आप बैंक की एक 7 से 12% की इंटरेस्ट कॉस्ट को रेगुलरली सर्व कर सकते हैं, और कोलेटरल जनरेशन भी आपके पास में कुछ सोर्सेज हो जहाँ पे कोलेटरल रेगुलरली जनरेट हो सके, तो मोस्ट प्रोबेबली आप बैंक के थ्रू काफी आगे तक जा सकते हैं। बट जिस तरह से अभी बैंकिंग सिनेरियो चल रहा है, कंपनीज को कोलेटरल्स की लिमिटेशन भी है, फिक्स कॉस्ट की भी एक चैलेंज होता है, तो आई थिंक उस स्टेज पे कंपनी अगर पब्लिक इशू को ऑप्ट करती है तो उसके लिए एक नेक्स्ट एवेन्यू खुल जाता है कैपिटल रेजिंग का। अदरवाइज वो बैंक पे डिपेंडेंट होने की वजह से हो सकता है वो कहीं स्टैग्नेशन में चल जाए, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक्स के अंदर मतलब एवरीबडी वुड अग्री कि इंडिया के अंदर इट्स नॉट अ कैश फ्लो ड्रिवन फंडिंग, इट इज मोर ऑफ अ प्रॉफिटेबिलिटी फंडिंग। सो अल्टीमेटली बैंक कोलेटरल देख के आपको फंडिंग करेगा, और आपके प्रॉफिटेबिलिटी क्या है क्या नहीं उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, तो इंटरेस्ट के कॉस्ट पर अपनी सफिशिएंट कॉस्ट लेता रहेगा। सो कैश फ्लोज के अंदर एक चैलेंज आ जाता है। सो आई वुड पुट इट दैट वे कि जब लार्जली एज ए प्रोफेशनल या एज ए कंपनी प्रमोटर हमको लगता है कि नाउ देयर वुड प्रोबेबली बी अ लिमिटेशन ऑन द कोलेटरल पार्ट and we do want to get another source of avenue, that is a time where company should start preparing for an IPO rather than recognizing one fine day कि यार बैंक अब लैंडिंग नहीं कर रहा है, अब हम क्या करें। क्योंकि जब एक स्ट्रेस के अंदर कोई कंपनी आएगी तो कोई भी इन्वेस्टर्स को वैल्यू नहीं देगा। लार्जली मैंने क्लाइंट्स को हरदम अपने करियर में यही एडवाइस किया कि अगर आपको लगता है कि 3 साल बाद आपको बैंकिंग चैलेंज आ सकता है, तो आप आज से ही प्रिपरेशन आईपीओ की चालू कर दीजिए, क्योंकि आईपीओ की प्रिपरेशन में आपको एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड सेट करना, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस लेके आना, अपनी कंपनी के वैल्यूएशन पैरामीटर्स को ठीक करना, और जो बुक्स में हम लार्जली काफी अंडर रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसको ठीक करने में 2-3 साल लग जाएंगे। सो इट इज नॉट दैट today you decide that I want a public issue and one fine day you will see that yes I am there with the public issue. लार्जली हम मार्केट में देखते हैं कि ट्रांजैक्शन बहुत तेजी से आ रहे हैं, बट अगर आप प्रेजेंट ट्रेंड में भी देखेंगे तो आई थिंक जनवरी 2021 से लेके अगस्त 24 अभी जो हम जस्ट 2 दिन पहले की बात कर रहे हैं, 98 आईपीओ फाइल हुए हैं। अप्रॉक्सिमेट 98 आईपीओ में जो 70 आईपीओ कंप्लीट हुए हैं उसमें 90% आईपीओ वो थे जिसमें प्राइवेट इक्विटी की फंडिंग ऑलरेडी हो रखी थी। सो दे वर लार्जली ऑफर फॉर सेल, जहां प्राइवेट इक्विटी एग्जिट कर रही है, और जहां पे एक प्राइवेट इक्विटी 4 साल पहले इन्वेस्ट कर चुकी है ऑलरेडी, उसने सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस सेट कर दिए। तो आज इन कंपनी के लिए बहुत आसान है कि इमीडिएटली हमने आईपीओ की प्लानिंग करी, क्योंकि सिस्टम्स एंड प्रोसेस सेट है, बुक्स क्लीन एंड फेयर है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, और इन्वेस्टर जानते हैं कि इन कंपनी में ऑलरेडी एक वैल्यूएशन की बेंचमार्किंग हो चुकी है, क्योंकि 3 साल पहले पी ने फलाना वैल्यूएशन में पैसा लगाया था। अगर हम वो प्राइवेट इक्विटी का इन्वेस्टमेंट हटा दें तो यू विल नॉट फाइंड मोर देन 10% ऑफ द कंपनीज हु हैव एक्चुअली इमीडिएटली बॉट एन आईपीओ। बाकी किसी भी कंपनी को 2-3 साल तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो एज ए प्रोफेशनल मुझे लगता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक कंपनी को वेल इन एडवांस गाइड करें कि हम आईपीओ की तैयारी, इट्स नॉट अ ओवरनाइट जॉब, इट शुड एटलीस्ट बी टेकन विद अ पेशेंस ऑफ 1 and 1.5 ईयर। लार्जली आई थिंक आईपीओ के एडवांटेजेस हम सभी जानते हैं। क्लाइंट को समझाने के तौर पे मैंने एकेडमिक एडवांटेजेस एक तरफ अलग रखे हैं, और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो एक प्रोफेशनल के लिए इंपॉर्टेंट है अपने क्लाइंट को समझाना, या फिर उसका उस पर्सपेक्टिव को दिखाना अपने क्लाइंट को, वो लार्जली मुझे लगता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के तौर पे पावरफुल टूल क्रिएट कर सकती है कंपनी अगर वो लिस्टेड होती है। तो
बाजार से आपको कितना पैसा मिलेगा, आईपीओ पे कितना मिला, 2 साल बाद कितना मिला, दैट्स अ सेपरेट पॉइंट। बट अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट क्या है कि आज हम नेटवर्थ के पैरामीटर से फ्री होकर मार्केट कैपिटलाइजेशन के वैल्यूएशन के ऊपर हम अपने आप को सेट कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आज कोई भी कंपनी फॉर दैट मैटर किसी भी सेक्टर के अंदर इसलिए वैल्यू नहीं है क्योंकि उसका नेटवर्थ 200 करोड़ रुपए है, मोस्ट प्रोबेबली उसके 30 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पे 20 टाइम्स के मल्टीपल पे वो 600 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन कमांड कर रही है, और उसी वैल्यूएशन को इन्वेस्टर्स भी एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसी वैल्यूएशन को एम्प्लॉयज भी एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसी वैल्यूएशन को बैंक्स भी एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो एक अनलिस्टेड कंपनी जो 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा रही है वो सिर्फ 100 करोड़ रुपए के नेटवर्थ के लिए जानी जा रही है, उसका वैल्यूएशन भी वही हो रहा है, फॉर दैट मैटर इनकम टैक्स भी उसको बुक वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर रहा है। जबकि एक लिस्टेड कंपनी वो ही 20 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के सामने अगर उसका इंडस्ट्री मल्टीपल 20 टाइम्स का चल रहा है तो आज वो 400 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन डिराइव कर रही है, विच इज सब्सटेंशियली हाई। सो उसने फॉरेक्स की वैल्यूएशन क्रिएट कर लिया जो कि उसको बिजनेस ऑफ बिजनेस हर जगह हेल्प करेगा। दिस इज वेरी क्रिटिकल। सो आज हम देखते हैं कि कितनी जगह वैल्यूएशन एक बहुत क्रिटिकल टूल प्ले करता है। तो आई थिंक एक ही इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा मुझे लगता है कि ऑपरेशनली एक कंपनी बेटर रिकॉग्नाइज हो जाती है, उसका ब्रांड बेटर बिल्ड हो जाता है अगर वो कैपिटल मार्केट्स में लिस्टेड है। सो फॉर दैट मैटर आईटी सेक्टर के अंदर अगर हम आज बोलते हैं कि भाई मेरे जैसे छोटे भाई ने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी सॉफ्टवेयर में, वो कॉग्निजेंट ज्वाइन करेगा इन्फोसिस, दोनों सेम साइज की कंपनीज है, बट हो सकता है वो बोले मैं इन्फोसिस ज्यादा ज्वाइन करूंगा, उसकी लाइकिंग इन्फोसिस के लिए ज्यादा है क्योंकि लिस्टेड है, उसका एक ब्रांड है, विजिबिलिटी है। कॉग्निजेंट के बारे में उसने ज्यादा नहीं सुना, ज्यादा नहीं पढ़ा। सो एक लेमैन के तौर पे भी लिस्टेड कंपनी की विजिबिलिटी मच मोर टाइम्स है, और डेफिनेटली ऑपरेशनली विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी बिजनेस में बहुत हेल्प करती है। तो लिस्टिंग आल्सो ब्रिंग्स टू दैट वैल्यू। आज हमने फॉर एग्जांपल शाम टीएमटी लिस्टिंग देखा, शाम मेटेलिक्स, सालों से, हो सकता है 10 सालों से उसके सरिये बाजार में मिल रहे थे, हमारे घरों में भी लगे होंगे, बट दैट वाज नेवर रिकॉग्नाइज्ड एज अ ब्रांड बाय अस। वो भी ठीक है, सरिया बनाती है, भी बहुत सारी कंपनियां हैं, कामधेनु भी बनाती है, शाम भी बनाती है, फलाना चंजी भी बनाते हैं, बट वंस इट इज देयर इनटू द कैपिटल मार्केट यू एक्चुअली गेट टू हैव अ बेटर ब्रांड रिकॉग्निशन। सेम इज द स्टोरी विद लेट्स से पॉलीकैब। पॉलीकैब भी सालों से बिजनेस के अंदर है, बट हेवल्स और पॉलीकैब को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, और अनलिस्टेड प्लेयर्स में बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिकल्स फिटिंग्स में और इक्विपमेंट में, बट उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो ब्रांड बिल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम एज ए प्रोफेशनल अपने क्लाइंट्स को बता सकते हैं कि इट गिव्स अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू योर कंपनी वंस यू आर लिस्टेड। थर्ड, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंटली, लिस्टिंग होने के बाद द मैनेजमेंट हैज टू बी मोर प्रोफेशनल, सो इट गेट्स इनटू द स्किन ऑफ अ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। कंपनी की एक लॉन्जिविटी बढ़ जाती है, और कंपनी, आई वुड पुट इट दैट वे, कि एक लिस्टेड कंपनी इज नॉट टैग टू प्रमोटर्स। मतलब प्रमोटर्स के होने नहीं होने से लिस्टेड कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, इट गोज ऑन ऑन एंड ऑन। सो इट्स मोर ऑफ अ सक्सेशन प्लानिंग। काफी ऐसे भी क्लाइंट्स को मैंने एडवाइस किया आईपीओ के लिए जहाँ पे उनको लगता है कि आज से 10 साल बाद उनके सक्सेशन प्लानिंग के इश्यूज होंगे। सो वो भी एक इंपॉर्टेंट टूल है जहाँ पे ऐसे क्लाइंट जहाँ पे उनको लगता है कि 10 साल बाद हमको सक्सेशन प्लानिंग के इशू होंगे, साहब हमारा तो बच्चा यूएस के अंदर नौकरी कर रहा है, एक बच्चा हमारे पिक्चर बना रहा है, तो हम क्या करें। तो आज अगर वो कंपनी लिस्टेड नहीं है तो उसका आगे कोई भविष्य नहीं है, जबकि वो लिस्टेड कंपनी मोस्ट प्रोबेबली एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट के थ्रू आगे कंटिन्यू कर सकती है और आप प्रमोटर शोल्डर बने रह सकते हैं। तो सेम एज द स्टोरी विद इन्फोसिस। इन्फोसिस में कोई लेट्स से जो ओरिजिनल फाउंडर्स थे वो तो आज मौजूद ही नहीं है, वो तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में शेयर्स लेके बैठे हुए हैं और मैनेजमेंट प्रोफेशनल इसको रन कर रहा है। सेम इज द स्टोरी विद डाबर, सेम इज द स्टोरी विद इवन जोमेटो। जोमेटो भी आप देखेंगे तो उसमें कोई प्रमोटर है ही नहीं आइडेंटिफाइड, इट्स अ प्रोफेशनली मैनेज कंपनी। सो आई वुड पुट इट दैट वे दैट ऐसे क्लाइंट्स जहाँ पे आपको लगता है कि एक सक्सेशन इशू है, वहां पे भी एक बिजनेस को इनफाइनाइट एज प्रोवाइड करने के लिए लिस्टिंग एज अ टूल सजेस्ट किया जा सकता है। आप थोड़ा सा एक बार, आई थिंक आई वुड ब्रिंग एवरीबॉडीज अटेंशन टू व्हाट आर द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, कि एक अनलिस्टेड कंपनी कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कंपनी। हमारे क्लाइंट की क्या साइज है, क्या रेवेन्यू ब्रैकेट है, क्या उसकी ग्रोथ एस्पिरेशन है, कितना वो पैसा रेज करना चाहते हैं। सो लार्जली अभी नॉमिनक्लेचर वाइज 4 प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है इंडिया में जहाँ पे एक अनलिस्टेड कंपनी एक्सप्लोर कर सकती है। वन ऑफ द प्लेटफॉर्म इज द स्टार्टअप प्लेटफॉर्म। ये बीएससी ने प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे एक ऐसी कंपनी जो कि बहुत ही अभी इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में है, 2-3 साल उसके हो चुके हैं, बट अभी उसने बहुत ज्यादा कोई बहुत रेवेन्यूज नहीं कमाए हैं, वो एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म पे अपनी लिस्टिंग कर सकती है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल रखी गई है, जैसे कि आप देखेंगे रिक्वायरमेंट है कि उसकी 2 साल से उसकी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सी चीज है। सेबी का कोई अप्रूवल नहीं है, और नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट है पॉजिटिव नेटवर्थ, टेंजिबल एसेट्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक बहुत ही लीनियंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी कंपनी जो अपने स्टार्टअप फेज में है वो लिस्टिंग करा सकती है। सेकंड प्लेटफॉर्म जो बीएससी और एनएससी के ऊपर मौजूद है दैट इज आईजीपी, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। लार्जली सेबी कोशिश कर रहा है कि ऐसी कंपनीज जो स्टार्टअप के एक मैच्योर फेज में है
और अभी मेन बोर्ड जितनी बड़ी नहीं हुई है उनको आईजीपी के ऊपर एंट्री दी जा सके. सो इट इज अ निश प्लेटफॉर्म विच इज प्रपोज्ड बाय सेबी फॉर कंपनीज विच आर फंडेड बाय अ प्राइवेट इक्विटी. और इसके अंदर कुछ इसी तरह से ट्वीक्स करे गए हैं रेगुलेशंस के, ताकि कंपनी अपनी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे कई बार होता है 25% एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर होल्ड कर रहा है, प्रमोटर्स 2 साल 3 साल की लॉक इन नहीं बियर कर सकते क्योंकि इमीडिएटली उनको फंड्स रेज करने हैं 6 महीने बाद में आईपीओ के, तो वहाँ पे आईजीपी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है. और यहाँ पे भी बेसिकली जो रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत लीनियंट रखी गई है. लार्जली सूट करती है ये रिक्वायरमेंट्स एक स्टार्टअप कंपनी को जो कि एक मैच्योर फेज ऑफ ग्रोथ में है, ना कि इनिशियल फेज में, उसमें प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है ऑलरेडी. तीसरा प्लेटफॉर्म जो आई थिंक काफी अब ट्रैक्शन जिसमें आ चुका है, बीएससी और एनएससी पुट टुगेदर 900 950 कंपनी लिस्ट हो चुकी है. उस प्लेटफॉर्म में से करीब 125-150 कंपनी मेन बोर्ड पर शिफ्ट हो चुकी है. दैट इज एसएमई प्लेटफॉर्म. इसके अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट के तौर पे 25 करोड़ रुपए से कम की कैपिटल होनी चाहिए, टेंजिबल एसेट्स की छोटी सी रिक्वायरमेंट है, और आपके पीछे 3 सालों में से 2 सालों में पॉजिटिव कैश अप्रूवल्स होने चाहिए. 2 से 3 महीने का इसमें टाइम फ्रेम है और इसमें सेबी का कोई अप्रूवल नहीं है. तो लार्जली एक कंपनी जो ना तो बहुत ही इनिशियल फेज स्टार्टअप में है, ना ही उसमें प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टेड है, और मेन बोर्ड जितनी बड़ी भी नहीं हुई है, वो एक एसएमई प्लेटफॉर्म पे अपने आईपीओ की प्लानिंग कर सकती है. लास्ट जो सबसे सुप्रीम और सबसे बड़ा है, दैट इज द मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म. और ऐसी कंपनीज जो मेन बोर्ड जितनी बड़ी है, अब ये मेन बोर्ड जितनी बड़ी है या एसएमई प्लेटफॉर्म के लिए कौन सी कंपनी को टारगेट करना चाहिए, ये एक टेक्निकल पॉइंट है जिसका एकेडमिकली कोई जवाब नहीं है. तो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने चार्ट क्रिएट किया है नेक्स्ट स्लाइड में कि हम कौन सी कंपनी को कौन सा प्लेटफॉर्म रेफर करें. मेन बोर्ड के ऊपर रिक्वायरमेंट है लार्जली कि पिछले 3 सालों में आपके 15 करोड़ रुपए के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स होने चाहिए. वो एक क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है. तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो कंपनीज आईपीओ मेन बोर्ड पे लेके आ रही है, या तो उनके ऊपर 15 करोड़ रुपए की उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी की रिक्वायरमेंट पूरी की होगी, तब तो 50% क्यूआईबी से आईपीओ भरवाती है. और अगर वो 15 करोड़ रुपए वाले प्रॉफिट को कंप्लाई नहीं कर रही है, तो सेबी बोलती है आप 75% क्यूआईबी से भरो. हम नहीं चाहते कि रिटेल एचएनआई इन्वेस्टर इसमें रिस्क ले, क्योंकि आप प्रॉफिटेबिलिटी को कवर नहीं करते. इसलिए कंपनीज लाइक जितने भी आप स्टार्टअप्स के आईपीओ देख रहे हैं, चाहे वो जोमेटो हो, या फिर मान लीजिए वो नायका का आने वाला आईपीओ है, या मोबीक्विक का आईपीओ होगा, ऐसी जो भी कंपनी इसमें प्रॉफिट नहीं कमा रही है ऑपरेशनली, उन सभी को सेबी मैंडेट करती है कि आप 75% अपना आईपीओ क्यूआईबी से सब्सक्राइब कराओ. और हम रिटेल और एचएनआई इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन में कम से कम चाहते हैं. और 75% नॉट लेस देन वाली कंडीशन है कि अगर 75% से कम हुआ आपका क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन, तो हम आपका आईपीओ रिजेक्ट कर देंगे. ऐसी कंपनीज जो 15 करोड़ रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी को कंप्लाई करती है, उसको बोलती है सेबी कि आप अप टू 50% अपना क्यूआईबी से भरवा सकते हो, बाकी बचा हुआ 35 और 15 आप रिटेल और एचएनआई के मिक्सचर से भरवा सकते हो. सो ये लार्जली फ्रेम है. इंडिया के अंदर अभी 4 प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं. इसमें से सिर्फ मेन बोर्ड को ही सेबी रेगुलेट करता है, और बाकी स्टार्टअप, आईजीपी और एसएमई तीनों प्लेटफॉर्म सेबी के परव्यू से बाहर है. उसमें सिर्फ एक्सचेंज लेवल पे ही फाइलिंग होती है और एक्सचेंज लेवल पे ही उसमें अप्रूवल्स दिए जाते हैं. नेटवर्क के तौर पे मैंने बताया कि लीनियंट है तीनों प्लेटफॉर्म. मेन बोर्ड के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी की एक स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है कि 15 करोड़ रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए ऑपरेशनल लेवल पे, और अगर वो नहीं होती है तो हमको क्यूआईबी के सहारे ही आईपीओ को सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा. गोइंग अहेड, मैंने एक आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन द मार्केट, मैंने एक चार्ट क्रिएट करने की कोशिश की, विच इज नॉट एकेडमिकली प्रेस्क्राइब्ड, ना तो ये सेबी में है ना एक्सचेंज में है, कि कौन सी कंपनी कहाँ अपनी लिस्टिंग देखे. सो लार्जली मुझे लगता है कि इनिशियल फेज की ऐसी कंपनीज जिनका 50 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है, वो कहीं ना कहीं आईजीपी या स्टार्टअप प्लेटफॉर्म पर अपनी लिस्टिंग सोच सकती हैं. ऐसी कंपनी जो एक इनिशियल फेज से निकल के ग्रोथ फेज में आ गई, ग्रोथ फेज में बोलूंगा जहां पे मान लीजिए वो हो सकता है आने वाले 3 साल हर साल 50% ग्रोथ करने वाली हैं. अब रेवेन्यू की विजिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि बहुत फ्लक्चुएशंस आएंगे, बट हाई ग्रोथ फेज में है. ऐसी कंपनी जो 50 से 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर की रेंज में, वो एसएमई एक्सचेंज टारगेट कर सकती हैं. और ऐसी कंपनी जो एक मैच्योर फेज ऑफ ग्रोथ में आ गई, जहां पे वो आप प्रिडिक्टेबली आने वाले 3 साल 15 से 20% ग्रो करेंगी, हाई ग्रोथ फेज जा चुका है और एक स्टेबल ग्रोथ फेज आ चुका है, और करीब करीब उनका रेवेन्यू 250 करोड़ रुपए से ऊपर है, वो मेन बोर्ड के ऊपर अपना आईपीओ टारगेट कर सकती है. तो एज ए प्रोफेशनल भी अगर हम अपने क्लाइंट्स के पूल को देखते हैं, तो लार्जली ये फ्रेम ऑफ माइंड के साथ में एडवाइस कर सकते हैं कि हम कौन सी ऐसी कंपनी को कौन सा आईपीओ का प्लेटफॉर्म एडवाइस करें. सो हैविंग सेड दिस, हो सकता है कुछ ऐसी कंपनीज हो जो 200 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रही है फिर भी मेन बोर्ड पे आ रही हो, कुड बी, बट इट ऑल डिपेंड्स कि अल्टीमेटली उनके आने वाली ग्रोथ की स्टोरी क्या है और 200 करोड़ रुपए के टर्नओवर पे प्रॉफिट कितना कमा रही है. एक कंपनी जो फार्मा में है, वो हो सकता है 200 करोड़ रुपए पे 30 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा रही हो.
फार्मा का सेक्टर हॉट है तो उसमें हो सकता है 20 टाइम्स का मल्टीपल मिल रहा हो, तो 600 करोड़ रुपए वैल्यूएशन पे वो एक 150-200 करोड़ रुपए का आईपीओ लेके आ रही हो मेन बोर्ड पे, विच इज वायबल। स्टील सेक्टर में हो सकता है एक 200 करोड़ रुपए की टर्नओवर वाली कंपनी 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा रही हो, 6 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमा रही हो, तो हो सकता है उसके लिए मेन बोर्ड की वायबिलिटी ना बैठे। सो लार्जली रेवेन्यू के ऊपर हम बेंचमार्किंग कर सकते हैं कि कौन से कंपनी को कौन सा प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करना चाहिए। गोइंग फर्दर, एक मैंने बहुत सिंपल से चार्ट क्रिएट किया है, इनफैक्ट दीप ने क्रिएट करा ये चार्ट और पूरी प्रेजेंटेशन में भी दीप ने काफी हेल्प करी मेरी। एक लिस्टिंग का प्रोसेस क्या है। सो आई थिंक इंटरमीडिएट्स के तौर पे मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना, उनके साथ में प्री आईपीओ प्रिपरेशन करना जिसके अंदर कंपनी के ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कमिटीज बनाना, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग करना, बोनस इशू कितना देना है, कोई कंसोलिडेशन या स्प्लिट करना है क्या, ये सब डिस्कशंस के बाद में नेक्स्ट स्टेज पे कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक कन्वर्ट करना, बाकी के दूसरे अपॉइंटमेंट्स करना, ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट करने के बाद में ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस एक्सचेंज पे फाइल करना, उसके बाद में सेबी के अप्रूवल, सेबी के क्वेरीज, मार्केटिंग रोड शोज करना, और उसके बाद में एक्सचेंज का अप्रूवल मिलने के बाद में आईपीओ लॉन्च करना, यानी आईपीओ ओपन करना। सो इस आईपीओ ओपनिंग के बाद T+6 या T+3 जो भी अब सेबी की रेगुलेशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट लिस्टिंग कंप्लीट करते हुए लिस्टिंग करना। लार्जली ये ब्रॉड लेवल का प्रोसेस है जो कि शुरू होगा मर्चेंट बैंकर्स के अपॉइंटमेंट से। जैसा मैंने प्रेजेंटेशन इस डिस्कशन के स्टार्ट में कहा कि लार्जली मैं चाहता हूँ इससे पहले एक रोल और प्रोफेशनल्स का है, वो है एक कंपनी को रेडी करना और फिर उसके बाद में मर्चेंट बैंकर के साथ में मीटिंग के लिए लेके जाना। सो आई थिंक एक वो प्री फेज है जहाँ पे क्लाइंट्स को प्रोफेशनल गाइड कर सकते हैं कंपनी को आईपीओ रेडी करने के लिए, कि मर्चेंट बैंकर तो बहुत ट्रांजैक्शनल माइंडसेट से आता है। टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, मतलब आप किसी मर्चेंट बैंकर को बोलें कि यार आप एक कंपनी को 1 साल गाइड करो, इसका 13वें महीने में आईपीओ लेके आएंगे, वो बोलेगा नहीं भैया मेरे पास तो 5 कंपनीज है जिनको इमीडिएटली मुझे आईपीओ लेके आना है, राइट। बट दिस रोल कैन बी वेरी वेल डन बाय अ प्रोफेशनल जो कि 1 साल तक की कंपनी को आईपीओ के लिए नर्चर कर सकता है और फिर 12वें महीने में मर्चेंट बैंकर के साथ ले जाके मिला सकता है। सो दैट्स वेयर आई थिंक एक आईपीओ प्रोसेस की मैंने रूपरेखा शेयर करी है। सो आई थिंक ये एक मोटा मोटा मैंने बताया कि एक अनलिस्टेड कंपनी को फर्स्ट टाइम कैपिटल मार्केट अप्रोच करने के लिए क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, किस साइज की कंपनी को कहाँ देखना चाहिए, प्रोसेस क्या है। अब थोड़ा सा आई थिंक मैं बात करना चाहूँगा कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है फंड रेजिंग की, क्योंकि हो सकता है हमारे काफ़ी क्लाइंट्स लिस्टेड हों, या हो सकता है मुझे लगती है एक अपॉर्चुनिटी की इस समय प्रोफेशनल्स को एक और एवेन्यू देखना चाहिए कि ऐसी कंपनीज जो कि ऐसे सेक्टर में है जहाँ पे अच्छा ट्रैक्शन है। मैं उन सेक्टर्स की बात करूंगी कौन से सेक्टर्स में अच्छा ट्रैक्शन है। हम देखें कि यार हमारे पूल ऑफ क्लाइंट्स के अंदर कौन सी अनलिस्टेड कंपनीज है जो इस सेक्टर के अंदर है, उनको हम आईपीओ एडवाइस कर सकते हैं क्योंकि सेक्टर अभी डिमांड में है, सेक्टर अभी हॉट है, इन्वेस्टर फ्रेंडली है। एट द सेम टाइम हम आज एक नॉर्मल सा डेटाबेस प्रिपेयर कर सकते हैं कि यार चलो लेट्स सी मेरे मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स बॉम्बे में है, तो आज बॉम्बे में कौन सी कंपनीज है जो 2000 करोड़ रुपए से कम की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे हैं और केमिकल, फार्मा या इन सेक्टर्स के अंदर है। देखता हूँ यार मेरा कोई इसमें प्रोफेशनल कलीग चार्टर्ड अकाउंटेंट या स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो सकता है मेरे कोई और जानने पहचानने वाले उस कंपनी में, और उस कंपनी से मैं बात करता हूँ कि क्या यार आप फंडरेजिंग करना चाहते हो क्या। सो लार्जली पॉइंट इज कि हम ज्यादातर फोकस रखते हैं अनलिस्टेड कंपनीज को आईपीओ पे लेके जाने के लिए, जबकि मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोफेशनल्स के लिए है लिस्टेड कंपनी में भी फंडरेजिंग एडवाइस करने की, सब्जेक्ट टू हमको थोड़ा या आइडिया हो कि हमारे पास टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है, मोटा मोटा प्रोसेस क्या है। सो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब काफी लोग हैं जो मर्चेंट बैंकिंग बैकग्राउंड से उनको काफी आइडिया होगा, बट स्टिल दिस इज अ न्यू एवेन्यू व्हिच आई बिलीव दैट एज ए प्रोफेशनल्स वी कैन टैप, कि अगर मुझको कोई मेरी कंपनी नजर आती है जहाँ पे मेरे जानकार ही स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं, केमिकल्स के अंदर है, 500-600 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रही है और बॉम्बे बेस्ड है, और मुझे लगता है कि यार लिस्टेड कंपनी है, सेक्टर अभी डिमांड में है, तो क्यों नहीं उनसे एक बार बात करें कि यार कोई आप फंडरेजिंग प्लान कर रहे हो क्या। तो that's where I think this opportunity comes in. So I think I'll straight away come to कि एक लिस्टेड कंपनी के पास प्रोफेशनल्स कौन कौन से टूल्स एंड मेथड्स देख सकते हैं। पहला मेथड है QIB, जिसे हम बोल सकते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। एक ऐसा मेथड जहाँ पे एक लिस्टेड कंपनी प्रेफरेंशियल बेसिस पर अलॉटमेंट करती है लेकिन म्यूचुअल फंड्स को या किसी मार्की इन्वेस्टर को। सो ऐसे इंस्टीट्यूट जिनको सेबी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के तौर पे रिकॉग्नाइज करता है, इसमें म्यूचुअल फंड्स आते हैं, इसके अंदर बैंक की AMCs आती है, इसमें इंश्योरेंस कंपनीज आती है, इसके अंदर सोवरेन फंड्स आते हैं, इसमें LIC, इसमें PF अथॉरिटीज आती हैं, इसमें जितने भी AIFs हैं, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1, 2, 3, वो सब इसी में आते हैं। तो जब एक कंपनी प्रेफरेंशियल बेसिस पे किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को पैसा रेज करती है और शेयर्स अलॉट करती है, वो QIP के तौर पे कहलाता है। एक ऐसी कंपनी जो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑप्शन देती है राइट्स इशू लाने का, कि भाई हम
अभी रिलायंस का राइट्स इशू सभी ने देखा था, तो ये काफी अभी रिमेम्बरेंस में भी है लोगों के। वो एक राइट्स इशू का मेथड है जहाँ पे कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट देती है कि हम फर्दर पैसा रेज कर रहे हैं और हम आपको पहला राइट देना चाहते हैं इसके सब्सक्रिप्शन का, आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो और आप चाहो तो इसको फोरगो कर सकते हो। अगर आप यूज करोगे तो वहां पे डिस्काउंट का अपॉर्चुनिटी रहती है कि हो सकता है बाजार में भाव चल रहा है 200 रुपए और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को इशू करती है राइट 120 रुपए में, तो 20-80 रुपीज का इमीडिएट गैप है जो राइट इशू होने के बाद भी हो सकता है शेयर होल्डर्स को फायदा ही हो, और चाहे तो शेयर होल्डर उस राइट को फॉरगो कर सकता है और दूसरा जना उसको एक्सेप्ट कर सकता है। थर्ड, जैसे मैंने बताया, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एक ऐसा मेथोडोलॉजी जहाँ पे कंपनी प्रेफरेंशियल बेसिस पे बोर्ड मीटिंग के थ्रू एक अलॉटमेंट करती है, बट ये किसी इंस्टीट्यूट को नहीं है, किसी एचएनआई को हो सकता है या हो सकता है किसी और ऐसे इन्वेस्टर को जो इंस्टीट्यूट के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं है, तो फिर ये सिंपल प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बन जाएगा। लास्ट मेथड जो कि काफी हद तक आईपीओ जैसा ही है, बट क्योंकि कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है इसलिए वो कहलाता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। कोई भी ऐसा कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है और वापस से वो सेबी के रास्ते के थ्रू ब्रॉड बेस्ड पब्लिक इशू लेके आए, दैट इज कॉल्ड फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ये थोड़ा सा मेथड कम चलन में है क्योंकि इसके अंदर लार्जली प्रोसेस और कॉस्ट काफी इन्वॉल्व है। एक लिस्टेड कंपनी बार बार एफपीओ लाने की जगह इंस्टीट्यूशनल या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू कंटिन्यूसली पैसा रेज कर लेती है, और राइट्स इशू बहुत फ्लेक्सिबल है। अभी जो सेबी ने कभी मौका मिलेगा तो मैं डेफिनेटली अशोक जी के साथ में स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी सेशन करूंगा कि राइट्स इशू में अभी क्या मेथड्स हैं, सेबी कितने राइट इशू को एग्जाम करती है। 50 करोड़ रुपए तक में फास्ट ट्रैक का ऑप्शन अवेलेबल है, बट लिस्टेड कंपनी इसलिए एफपीओ को प्रेफर ना करते हुए राइट्स इशू और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू सेकंड राउंड ऑफ थर्ड राउंड ऑफ फंड रेजिंग करती रहती है। आई थिंक ये 4 मेथड हैं जो प्रोफेशनल के तौर पे हम ध्यान में रख सकते हैं अगर हमको किसी कंपनी को फंड रेजिंग एडवाइस करना है। तो चारों मेथड में एक मैंने मोटा मोटा, क्योंकि हर मेथड अपने आप में सेबी में एक डिटेल्ड प्रोसेस है, बट एक ऊपरी ऊपरी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोफेशनल्स के तौर पे क्या प्रोसेस है, जैसे क्यूआईबी, राइट्स इशू, प्रेफरेंशियल या फॉलो ऑन में बोर्ड मीटिंग सभी में मैंडेटरी है, सभी में करना पड़ेगा, जबकि ऑफर लेटर की फाइलिंग क्यूआईबी में जरूरी नहीं है। राइट्स इशू, प्रेफरेंशियल और फॉलो ऑन में आपको एक ऑफर लेटर फाइल करना पड़ता है। अब वो एफपीओ के अंदर वो ऑफर लेटर लेट्स से डीआरएचपी के नाम से जाना जाता है, प्रेफरेंशियल में वो एक लेट्स से एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के नाम से जाना जाता है, राइट्स इशू में लेटर ऑफर के नाम से जाना जाता है। स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत उसी तरह से, मतलब क्यूआईबी प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल में राइट्स इशू और फॉलो ऑन ऑफर के अंदर जरूरत नहीं है। लॉक इन की रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबिलिटी क्यूआईबी और राइट्स इशू में नहीं है, प्रेफरेंशियल और फॉलो ऑन में लॉक इन अप्लाई होती है। और सेबी का अप्रूवल के तौर पे क्यूआईबी प्लेसमेंट के लिए कोई हमको सेबी का अप्रूवल नहीं चाहिए, जबकि राइट्स इशू अगर आप ला रहे हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ला रहे हैं और फॉलो ऑन ऑफर लेके आ रहे हैं, तो हमको वापस से सेबी अप्रूवल की जरूरत है। राइट्स इशू के अंदर अभी 50 करोड़ रुपए से छोटे राइट्स इशू सेबी ने एग्जाम कर दिए हैं फास्ट ट्रैक रूट के अंदर, जिसमें बिना सेबी का अप्रूवल के आप राइट्स इशू ला सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे इन दिनों काफी राइट्स इशू बैक टू बैक आ रहे हैं। सो आई थिंक जो फर्स्ट पार्ट था कि एक लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज के लिए कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल हैं फंड रेजिंग के तौर पे, वो मैंने शेयर किए। आई थिंक विथ एज अशोक जी एंड महेश्वरी जी सजेस्ट, अगर आपने कोई एक छोटा ब्रेक यहाँ देना है बिफोर आई टेक द सेकंड पार्ट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर्स एक कंपनी में किस परसेप्शन से देखते हैं और हम अपने क्लाइंट्स को या हम एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कंपनी में क्या देखें या हम क्लाइंट्स को क्या गाइड करें, वो मैं आई थिंक उसके बाद कंटिन्यू करना चाहूंगा। और अशोक जी अगर बोलें कि इसको एट ग्रो नहीं, पहले बेद जी आप कंप्लीट कर लीजिए, बाद में एक साथ फिर अपन डिस्कशन करेंगे, तो एटलीस्ट वी कैन कवर एवरीथिंग। श्योर एज यू एडवाइज। आई जस्ट थॉट कि एक पार्ट कंप्लीट हुआ तो शैल राइट। सो आई थिंक एक इंटरेस्टिंग और काफी अनटच टॉपिक है ये, जिसमें नॉर्मली काफी खुल के ये कोई नहीं बताता कि हम एक कंपनी में क्या देखें। सो लेट्स से अगर हम एनालिसिस देखते हैं तो काफी सारे ब्रोकर्स, काफी सारे रिसर्च हाउसेस एक कंपनी का एनालिसिस तो कर देते हैं, अल्टीमेटली ये देखते हैं कि वो सब्सक्राइब करो या नहीं करो, शॉर्ट टर्म के लिए करो, लॉन्ग टर्म के लिए करो, या फिर इकोनॉमिक टाइम्स काफी एक आई वुड से एक बहुत ही डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बोल देता है कि इसको रिस्की इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म्स के लिए सब्सक्राइब करें। अब मैं एज ए इन्वेस्टर में कंफ्यूज होता हूँ यार इसका क्या मतलब है कि भाई रिस्की इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करें, तो मैं लिस्टिंग के लिए नहीं करूँ, लॉन्ग टर्म का मैं 3 साल के लिए करूँ और अभी मैं सब्सक्राइब करूँ और भाव बाद में आधा रह जाए तो फिर मैं क्या करूँ। सो आई थिंक इसी चीज को टच करने के लिए आई थॉट कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोफेशनल्स के तौर पे हम कंपनी को भी क्या एडवाइस करें, एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी हम कौन से पैरामीटर्स को देखें जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ए इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव फॉर एनी कंपनी विच इज टारगेटिंग अ फंड रेजिंग फ्रॉम द कैपिटल मार्केट्स। सो इस चार्ट में मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो 6 पैरामीटर्स कंसोलिडेट किए हैं जो कि हमको देखना चाहिए एक कंपनी के लिए
या फिर हमको अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करना चाहिए जो कि पब्लिक इशू प्लान कर रहा हो। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है कि कैपेबिलिटी क्या है मैनेजमेंट टीम की उस कंपनी के शो को ड्राइव करने के लिए। सो लार्जली काफी जगह हमको ये देखने को मिलेगा कि कुछ कंपनी सिर्फ इसलिए फैंटास्टिक परफॉर्म कर रही है क्योंकि सेक्टर तेजी में था, अभी हवा थी, कोई एक्सपोर्ट प्रमोशन की स्कीम थी, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा कोइंसिडेंस था जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ हो गई। इंडिविजुअली उस कंपनी ने अपनी लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन देखे हैं, उसकी मैनेजमेंट टीम कितनी केपेबल है उसको उस शो को आगे लेके जाने में। ये आई थिंक एज ए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो हम एज ए मर्चेंट बैंकर के तौर पे देखते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट टीम की क्या कैपेबिलिटी है। तो जब मैं मैनेजमेंट टीम की बात करता हूँ, अगर मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूँ, क्या ये सिंगल प्रमोटर ड्रिवन कंपनी है कि अगर इस प्रमोटर इस कंपनी से आप निकाल दो तो उस कंपनी में कुछ नहीं बचता, या फिर उस प्रमोटर के साथ में उसने अपने साथ में एक सीईओ, सीएफओ, एक कंपनी सेक्रेटरी की एक ऐसी टीम क्रिएट करी है जो एटलीस्ट 75% कंपनी के बारे में उसका सीएफओ भी बता सकता है। या फिर आप उसके सीएफओ से मिलते हो और आपको लगता है ये मतलब ये फाइनेंस एंड अकाउंट्स का पर्सन है या सीएफओ है, क्या सिर्फ नाम के लिए इसको सीएफओ बोला जा रहा है, क्या इसकी कैपेबिलिटी है कि ये 70-75% कंपनी के बारे में प्रमोटर के एब्सेंस में बता सकता है, क्या प्रमोटर 10 दिन के लिए अगर ऑफिस नहीं आया तो इस कंपनी का काम चल सकता है क्या, और कंपनी का मैनेजमेंट का विजन क्या है। एंड लार्जली मैं जब विजन की बात कर रहा हूँ, इट इज नॉट अबाउट कि उसने अपने बोर्ड रूम में क्या विजन 2025 लिख रखा है, वो तो बहुत सारी कंपनीज लिख लेती है, बट वो क्या करना चाहती है, उसको कितनी क्लैरिटी है, उसकी मैनेजमेंट की बैंडविड्थ क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एज ए मर्चेंट बैंकर या एज ए इन्वेस्टमेंट बैंक हम देखते हैं कि एक कंपनी की इस कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे ग्रोथ ले जाने के लिए क्या तैयारी है मैनेजमेंट लेवल पे। एज ए इन्वेस्टर भी हमको देखना पड़ेगा कि एक कंपनी की कैपेबिलिटी क्या है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो लेट्स से नायका एक कंपनी है जिसने स्टार्टअप स्पेस में, मतलब स्टार्टअप तो नहीं हो, काफी मैच्योर स्टार्टअप है जिसने डीआरएसपी फाइल किया है। आप उसकी मैनेजमेंट टीम को देखेंगे तो फाल्गुनी नायर पहले एक इन्वेस्टमेंट बैंकर रह चुकी, 10-12 साल तक उन्होंने कोटक के अंदर अच्छा काम किया। बाद में उनके जब हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ लंदन तो उन्होंने बोला मैं अपना जॉब छोड़ना चाहती हूँ, तो उदय कोटक ने बोला कि नहीं आप जॉब मत छोड़ो, आप लंदन शिफ्ट हो रहे हो तो आप लंदन शिफ्ट हो जाओ, हम आपके लिए कोटक का ऑपरेशन लंदन में स्टार्ट कर देते हैं। तो पूरा लंदन न्यूयॉर्क के अंदर पूरा जो कोटक का सेटअप है वो फाल्गुनी ने किया। वहां से फिर 4-5-10 साल काम करने के बाद में उन्होंने क्विट करके एक अननोन फील्ड के अंदर एक कंपनी क्रिएट करी, उसके अंदर मल्टीपल राउंड्स रेस करते हुए यूनिकॉर्न बनाया और आज उसकी पूरी टीम सेट है। तो आज ये काफी चीजें बोलती है उस मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी के बारे में कि किस तरह से उसने पूरे अक्रॉस अपनी लाइफ अपॉर्चुनिटीज को मोनेटाइज किया है और एक बेंचमार्किंग क्रिएट करी है। सो इस तरह से काफी कंपनीज हमको मिलेगी जो कि मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी हमारे लिए जानने बहुत जरूरी है। और उसी का एक सब पार्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या स्टैंडर्ड है कि वहाँ पे एक डिफरेंट व्यू पॉइंट को कितना समझता है मैनेजमेंट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की क्या क्वालिटी है। हम कई बार देखते हैं कि आईपीओस के अंदर जैसे एक अभी सीएमएस इन्फो सिस्टम्स ने एक डीआरएसपी फाइल किया है, उसके ऊपर बोर्ड की जो चेयरमैन है दैट इज श्यामला गोपीनाथ जो कि रिजर्व बैंक की डेप्यूटी गवर्नर रह चुकी। सो आज एक कैश मैनेजमेंट की कंपनी है जिसपे रिजर्व बैंक का एक्स डेप्यूटी गवर्नर एज ए चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मौजूद है। इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड कि एक कंपनी किसी ब्यूरोक्रेट को इतनी वैल्यू देती है कि वो चेयरमैन के तौर पे वहां पे बोर्ड पे मौजूद है। और वो कैश मैनेजमेंट में कंपनी है, रिटेल कैश मैनेजमेंट में जो सबसे ज्यादा उनका काम आरबीआई से पड़ता है और आरबीआई का एक्स गवर्नर उसके बोर्ड पे है। So I mean to say this gives a very lot of confidence for any client or for any professional or the investor कि कंपनी की मैनेजमेंट कैपेबिलिटी का क्या I would say value है। So this is one important parameter. Second, I would go and give value to the past growth record of the company. कंपनी ने आईपीओ से पहले 3 सालों में क्या किया, आईपीओ वाले साल में क्या किया, काफी हद तक ये हमारे लिए इररिलेवेंट होता है क्योंकि जब कंपनी आईपीओ की तैयारी करती है तो समाऊ उसके प्रॉफिट्स भी अच्छे हो जाते हैं, उसके मार्जिन भी इंप्रूव हो जाते हैं और प्रमोटर सैलरीज भी कम विड्रॉ कर लेते हैं। बट आई थिंक पिछले 3 साल अगर कंपनी ने पेशेंस के साथ में वो ग्रोथ डिलीवर करी है तो देयर इज अ फेयर चांस कि अब वो पैरामीटर प्रमोटर्स के माइंड में इम्बाइब हो गया कि यार अब हमको ऐसा ही करना है, धंधे से पैसा नहीं निकालना है, हमको हाइजीन बना के रखनी है, बुक्स और एक्चुअल बिजनेस के अंदर डिफरेंस नहीं रखना है। सो आई वुड टिपिकली फील कि अगर एक कंपनी 3 साल तक अच्छा परफॉर्म कर रही है ट्रैक रिकॉर्ड में पिछले 3 साल में, देयर इज अ फेयर चांस कि वो आने वाले 3 साल में भी मार्केट के अंदर आने वाले 10 साल में भी कॉर्पोरेट हाइजीन और फाइनेंशियल हाइजीन के साथ में काम करेगी। विज कंपनीज के पास कई बार हम मिलते हैं, रीजंस आते हैं कि यार 2 साल से तो आपके प्रॉफिट्स का मार्जिन 5% था, अभी 11% हो गया, तो बोलते हैं साहब वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट में ये हो गया, हमको बेटर रियलाइजेशन हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि हमको पता है इंडस्ट्री लेवल पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अगर ऐसा हुआ भी है तो इट सिंपली मींस कि यार ये तो सिंपल एक मैक्रो पैरामीटर है, आपकी एफिशिएंसी क्या है इसमें, कल रॉ मटेरियल वापस से महंगे हो जाएंगे, प्रॉफिट आपके फिर डिप हो जाएंगे। सो आई थिंक दैट्स वेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी
कि अभी स्टील सेक्टर में तूफान आया हुआ है, आई वुड पुट इट दैट वे। तो छोटी बड़ी हर कंपनी चल रही है, मतलब उसका शायद नाम में स्टील होने की जरूरत है, वो चल रही है। जबकि विज़ हम देखते हैं कि जब ये कमोडिटी प्राइसेस की साइकिल ठंडी पड़ेगी तो कितनी कंपनीज हैं जो सर्वाइव करेगी। तो आज टाटा स्टील है वो 600 रुपए का 1500 हो गया, अभी भी लोग बुलिश हैं क्योंकि इसके मैनेजमेंट की क्वालिटी और ट्रैक रिकॉर्ड ग्रोथ का फैंटास्टिक है। विज़ हो सकता है कोई छोटी मोटी स्टील कंपनी जो अभी सिर्फ कमोडिटी साइकिल से पैसा बना रही है, जिस दिन रॉ मटेरियल्स की पोजीशन वापस से अनफेवरेबल होगी, उनके मार्जिन वापस से क्रैश हो जाएंगे। सो आई वुड पुट इट दैट वे कि पिछले 3 से 4 साल कंपनी का ग्रोथ रिकॉर्ड क्या रहा है, और एज ए प्रोफेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि उस कंपनी का कैपिटल अलोकेशन का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, वो कैपिटल को कितनी फाइनली अलॉट करती है और कैपिटल के ऊपर किस तरह से फैंटास्टिक रिटर्न जनरेट करती है। ये सबसे बड़ा पैरामीटर है जो कोई भी कंपनी कभी छुपा नहीं सकती। सो लार्जली हमने कंपनीज देखी है जिनकी एसेट ब्लॉक है 50 करोड़ रुपए का, और उनके बिजनेस में ऐसा नहीं कि इतना एसेट ब्लॉक हैवी होना चाहिए। 50 करोड़ रुपए का एसेट ब्लॉक है जो कि 20 करोड़ रुपए इक्विटी और 30 करोड़ रुपए बैंक लोन से फंडेड है, और वो कैपिटल रिटर्न कमा रही है 8% की, 8-9% की। तो हम कई बार उनसे क्वेश्चन करते हैं आप धंधा क्यों कर रहे हो, आप अपना धंधा ना बेच बुचा के एफडी करा दो, 7-8% की तो आपको म्यूचुअल फंड से भी रिटर्न मिल जाएगी। तो आप क्यों अननेसेसरी इतना ट्रबल ले रहे हो, 9% कैपिटल के ऊपर रिटर्न जनरेट कर रहे हो। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि एज ए प्रोफेशनल हम उनको बता सकते हैं कि कैपिटल का एफिशिएंट एलोकेशन क्या होता है, जो कि काफी हद तक प्रमोटर्स ऐसे मानते हैं कि भाई हम तो चैंपियन, हम सब जानते हैं, हमको प्रोफेशनल से एडवाइस नहीं चाहिए, हम तो प्रोफेशनल से इतनी बात करते हैं कि जी देखो हमको 20 करोड़ रुपए डेट चाहिए, आप ला सकते हो तो बताओ, वरना हम किसी और से बात करते हैं। तो मैंने ये समझा है कि अगर आप एक कंपनी को सही एडवाइस दोगे तो हो सकता है अभी नहीं 2 साल बाद में वो वापस आपके पास लौट के आएगी। तो कैपिटल एलोकेशन पे हमने कई बार देखा है, जैसे अभी हम एक कंपनी को एडवाइस कर रहे थे, मैं नाम तो नहीं बता पाऊंगा, बट वो डेट फ्री कंपनी है, और उसके एग्जिस्टिंग एडवाइजर ने उसको बोला कि यार आप डेट फ्री कंपनी हो, जो 40 करोड़ रुपए का एक्सपेंशन कर रहे हो आप प्योर डेट से कर लो, लिस्टेड कंपनी। और डेट से क्यों कर लो, क्योंकि डेट फ्री कंपनी है और कोटक आपको आराम से हाथों हाथ लोन देने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। हमने उनसे बोला भाई आप 40 करोड़ रुपए का आप एक्सपेंशन कर रहे हो, आपकी टोटल सेल्स आज तक की अपनी लाइफ में 60 करोड़ रुपए रही है, आप 40 करोड़ रुपए का एक्सपेंशन कर रहे हो, तो क्यों ना इस एक्सपेंशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। पहले आप 20 करोड़ रुपए का एक्सपेंशन करो, 2 साल में जब वो एक्सपेंशन स्टेबलाइज हो जाए तो आप अगला 20 करोड़ रुपए का एक्सपेंशन करो। इस 20 करोड़ रुपए के एक्सपेंशन में 10 करोड़ रुपए हम आपको मार्केट से इक्विटी रेज करके देते हैं, और इक्विटी 10 करोड़ रुपए आप डेट से रेज करो। तो आप पहले 20 के अंदर 10-10 का ब्रेकअप रखो, अगले बार में जब ये एक्सपेंशन स्टेबलाइज हो जाएगा तो अगला 20 का तब करो। तो आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी या वो डिस्कशन कंपनी को समझ में आया कि यार ये एफिशिएंट एलोकेशन का एक मैकेनिज्म है, रादर देन मैं 40 करोड़ रुपए का एक डेट निकल लूं और फिर उस एक्सपेंशन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करूं। तो एज ए इन्वेस्टर भी हमको देखना चाहिए कि ऐसी कंपनीज जो मल्टीपल एक्सपेंशन करना चाह रही है बिना मैनेजमेंट कैपेबिलिटी के, उनको लगता है सिर्फ आईपीओ आ रहा है तो चलो आईपीओ से पैसा उठा लो और लगा लो, ये अल्टीमेटली ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में फेल ही होंगी। ऐसी कंपनी जो कैपिटल एलोकेशन के मैकेनिज्म को समझती है, एक एक रुपए पर रिटर्न कैसे कमानी है, आई थिंक डी मार्ट इसका एक फाइन एग्जाम्पल है, इमामी ग्रुप इसका एक फाइन एग्जाम्पल कि कैपिटल पे किस तरह से रिटर्न जनरेट की जाए। सो आई थिंक इस कैटेगरी को भी हमको देखना चाहिए, और किसी क्लाइंट को हम अगर आईपीओ के लिए एडवाइस कर रहे हैं तो उसको हमको गाइड भी करना चाहिए कैपिटल एलोकेशन के मैकेनिज्म पे। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट मैं ये पढ़ना चाहूंगा किसी भी कंपनी के आईपीओ में, या मेरे क्लाइंट को गाइड करना चाहूंगा कि आईपीओ के बाद वो करना क्या चाहती है, उसका ग्रोथ प्लान क्या है, और ग्रोथ प्लान वो कितना प्रिसाइजली अपने मीटिंग्स में या डीआरएचपी में या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में समझा पा रही है। तो अगर फॉर एग्जांपल अभी आप एक रिसेंट आईपीओ फाइल हुआ है सीएमएस इन्फो सिस्टम्स, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एज ए मार्केट रिसर्च एनालिस्ट में कोई कमेंट्री नहीं करता किसी पे, बट आप उसका अगर ग्रोथ स्ट्रेटेजी देखेंगे तो काफी ऐसा लगता है कि यार मैनेजमेंट आमने सामने आपसे बैठ के बात कर रहा है कि देखिए हम ये करते हैं, हम ऐसा ऐसा करेंगे, हमारे नजर के अंदर एक एक्विजिशन का टारगेट है, हम मार्जिन को ऐसे इंप्रूव करेंगे, और हमारी जो इतनी पॉइंट्स पे प्रेजेंस है कैश मैनेजमेंट के अंदर, हम उसको क्रॉस सेलिंग के थ्रू लिवरेज करेंगे। मार्केट ऑलरेडी कंसोलिडेट हो रहा है और यहाँ पे 4-5 बड़े लीडर्स ही बचेंगे जिसमें हम नंबर 1 है। तो इस तरह के ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड को समझना आसान है अगर कंपनी की तैयारी अच्छी है। अदरवाइज कंपनीज ऐसे हैंकी पैंकी जवाब देगी कि हम वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा रेस कर रहे हैं, हम डेट को रीपे कर देंगे। तो डेट को रीपे कर दोगे तो ठीक है, वो तो अभी मार्केट तेजी में था, आपने पैसा लिया और डेट को रीपे कर दिया, 1-1.5 साल बाद में वापस आपको डेट की जरूरत पड़ेगी। पता लगेगा हमने आज उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, 2 साल बाद उन्होंने इतना हैवी डेट रेस किया कि ईपीएस ही साफ हो गई। सो आई मीन टू से एक इंपॉर्टेंट एवेन्यू है कि कंपनी आईपीओ के बाद 2-3 साल क्या ग्रोथ करेगी, और उस ग्रोथ प्लान पे क्या कंपनी का मैनेजमेंट 3 घंटे बात कर सकता है, क्या एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के 5 क्वेश्चंस को वो जवाब दे सकता है क्या, कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ और मैं कैसे करूंगा, क्या इसका बिजनेस प्लान है, क्या रिटर्न जनरेट होगी, क्या प्रोजेक्शंस हैं, और क्या वो प्रोजेक्शन इक्विटी मार्केट के हिसाब से बनाए गए हैं या बैंक को सीएमआई डेटा के हिसाब से बनाए गए हैं। मतलब आई थिंक उसमें बात कवर हो जाती है कि बैंक तो सीएमआई मतलब विद ड्यू रिगार्ड्स
बैंक तो कभी देखता भी नहीं है, उसको तो लगता है कि हाँ भाई मेरा रेशियोज पूरे हो गए, माय जॉब इज डन। बट इक्विटी इन्वेस्टर के तौर पे मेरा खुद का पैसा लगा हुआ है, तो मुझे उस शीट का एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है। सो अल्टीमेटली द पॉइंट इज पोस्ट आईपीओ वो कंपनी क्या ग्रोथ प्लान कर रही है, दैट इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल। चौथा आई थिंक एक मैक्रो लेवल का पॉइंट है कि मार्केट की ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है। अगर मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो ऐसी कंपनी जिनको आज से 1 साल पहले कोई वैल्यू देने के लिए रेडी नहीं था, वो अभी वैल्यू अच्छी पाएंगी, उनका आईपीओ सब्सक्राइब भी होगा। बट मैंने ये देखा है कि आईपीओ के सक्सेसफुल होने में मार्केट का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इन्वेस्टर के अंदर एक फ्रेंजी होना, इंस्टीट्यूट के पास में लिक्विडिटी होना, सब्सक्रिप्शन के अंदर अच्छे पैसे लगना इंपॉर्टेंट है। बट एज ए इन्वेस्टर या एज ए प्रोफेशनल मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने अपनी कंपनी का आईपीओ 300 टाइम्स सब्सक्राइब करवा दिया और बाद में 300 टाइम्स की वैल्यू सस्टेन ही नहीं करी। तो कई बार हम फनी सिनेरियो देखते हैं मार्केट में कि आईपीओ के दिन तो इंस्टीट्यूट उसमें 140 टाइम्स सब्सक्राइब कर रहे थे, और जब कंपनी लिस्ट हुई तो 20% डिस्काउंट पे, और आज एक भी इंस्टीट्यूट नहीं खरीद रहा। तो 6 दिन में ऐसा कंपनी में क्या बदल गया कि आईपीओ पे तो एक शेयर के सामने 140 शेयर की बिडिंग लगा रहे थे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और छठे दिन जब कंपनी लिस्ट हुई तो एक ही इंस्टीट्यूट का अता पता नहीं है कि कहाँ गायब हो गए। तो लार्जली एज ए प्रोफेशनल या एज ए इन्वेस्टर मेरे लिए आईपीओ फ्रेंजी और कंपनी के वैल्यू को अलग रखना जरूरी है। आईपीओ फ्रेंजी कभी कभी हो सकता है, मतलब 10 आईपीओ में से 7 आईपीओ में आपको पैसे कमा दे, हमने देखा भी है ये। बट मोस्ट प्रोबेबली वो 3 ऐसी गलतियां करवाएगी कि इनिशियल लेवल पे कमाया हुआ पैसा उन्हीं आईपीओ में वापस चले जाएगा। तो यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एज ए प्रोफेशनल, जब हम क्लाइंट को एडवाइस भी दे रहे हैं, अगर हम मार्केट की वॉलेटिलिटी से ही टोटली ड्राइव हो रहे हैं, फंडामेंटल्स को साइड में रख के, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है हम एज ए मैटर ऑफ लक कमा लें। बट हम सभी प्रोफेशनल्स हैं, हार्ड अर्न मनी है, तो हम अपने पैसे के साथ में लक तो नहीं लगा सकते, मतलब अल्टीमेटली हमको इंटेलिजेंस लगानी पड़ेगी। तो दैट्स वेयर आई थिंक इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि मार्केट के वॉलेटिलिटी को देखते हुए हम अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करें कि यार देखो तैयारी पूरी रखनी है, जब मार्केट अच्छा होगा, सपोर्टिव होगा तो ओपन करेंगे, मार्केट सपोर्टिव नहीं हुआ तो पेशेंस रखेंगे और वापस से मार्केट के ट्रैक्शन आने का वेट करेंगे। तो आई थिंक वॉलेटिलिटी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है इन्वेस्टर के परसेप्शन में। नेक्स्ट पैरामीटर जो मेरे माइंड में आता है वो है फेवरेबल इंडस्ट्री होना और सेक्टर जो कि ट्रेंड में है। लार्जली आप देखेंगे साइक्लिकल्स होते हैं काफी सेक्टर, स्टील सेक्टर 5 साल से ठंडा था, अब 3 साल तेजी के हैं। फार्मा पिछले 5 साल से ठंडा था, अभी 3 साल तेजी के हैं। या फिर फॉर दैट मैटर केमिकल्स के साथ भी ये सिचुएशन है, और आईटीएस के साथ भी है। इन्फोसिस पिछले 5 साल से पिटा हुआ शेयर था, अब वो एकदम नई ऊंचाइयां छू रहा है। सो आई थिंक ऐसे सेक्टर्स और इंडस्ट्री को पकड़ना जो कि आने वाले सालों में ट्रेंड में रहने वाली है और जिनकी डिमांड रहने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कुछ सेक्टर्स भी शॉर्टलिस्ट करेंगे कौन से सेक्टर्स हमको लगता है कि आने वाले समय में इंपॉर्टेंट रहेंगे। बट इंपॉर्टेंटली फेवरेबल सेक्टर और ट्रेंड इंडस्ट्री का होना, ये भी एक आईपीओ के सक्सेस में या एक इन्वेस्टर के परसेप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक लास्ट आई वुड पुट इट दैट वे कि हमने सारी वर्किंग कर ली, हमने क्लाइंट को समझा भी दिया, या हम खुद इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, हमने वो भी उसके ऊपर पूरी कैलकुलेशन कर ली। बट लार्जली दूसरे कौन से ऐसे क्रेडिबल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इस आईपीओ के अंदर या इस कंपनी के अंदर अपना फेथ दिखाया है। सो आई वुड पुट इट दैट वे कि अगर कुछ क्रेडिबल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के तौर पर जाने जाते हैं, राइट, कोई सोवरेन फंड हो गया, कोई असेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई जिसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई म्यूचुअल फंड है जिसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इन्वेस्टिंग का, या कोई मार्की इन्वेस्टर है जो कि अपने इंटेलिजेंट डिसीजंस के लिए जाना जाता है, मुकुल अग्रवाल या रमेश दमानी या राकेश झुंझुनवाला, अगर इन इन्वेस्टर्स ने उस आईपीओ में कॉन्फिडेंस दिखाया है या मेरी कंपनी में कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, तो एक ये नेक्स्ट लेवल की वाउचिंग है कि जिस कंपनी को मैं अच्छा मान रहा हूँ उनको ये भी अच्छा मान रहे हैं। जबकि कुछ कंपनीज है जो आप देखेंगे जो आईपीओ के टाइम पे तो 120 टाइम 130 टाइम सब्सक्राइब हो गए, बट एक भी क्रेडिबल इन्वेस्टर ने उसमें सब्सक्रिप्शन नहीं लिया। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हमको तो समझ में आ रही थी, जो आप इनको समझ में नहीं आ रही। तो अल्टीमेटली द पॉइंट हियर इज दैट दूसरे मार्की नेम्स ने इक्विटी इन्वेस्टर साइड पे क्या कॉन्फिडेंस दिखाया, दैट इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल। So I think ये पैरामीटर्स हैं जो कुछ I would put it in a way that they are important for anybody, whether I am advising my client or a company, to particularly believe that how do investors look into a company before taking any decision. And as मतलब किसी भी सेट और किसी भी कैपेसिटी में मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं प्रोफेशनल हूँ, अपने क्लाइंट को एडवाइस कर रहा हूँ, तो मुझे इन पॉइंट्स को जरूर कवर करना है इक्विटी रेजिंग की एडवाइस में। अगर मैं खुद एक इन्वेस्टर हूँ तो मुझे इन पॉइंट्स को जरूर देखना है मेरे इन्वेस्टमेंट थीसिस में। और फॉर दैट मैटर इन एनी कैपेसिटी, दीज आर द पॉइंट्स व्हिच हैव अ रेलेवेंस फ्रॉम इन्वेस्टर माइंडसेट। लार्जली मैंने अपने करियर में जितने भी इन्वेस्टर से मुलाकात करी है वो इन्हीं 7-8 पैरामीटर्स पे कंपनी को जज करते हैं। सो आई थिंक दैट्स वेयर आई एम डन विद दिस पार्ट।
सो आई थिंक अशोक जी कि आप बोरिंग तो नहीं हो रहा है? Yeah. नहीं, superb. So I have done presentation. नहीं, आई थिंक So थोड़ा सा you done, Rajat जी? नहीं, अपना जो इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोफेशनल्स के लिए रजत जी? fundraising में क्या, या आई एम ऑडिबल? हाँ, Yeah, very, very much, and it is going on very या well, boss. तो आपका प्रेजेंटेशन और हो गया या आप और बाकी है थोड़ा? तो हाँ, लास्ट तो सेक्शन आपका बाकी है थोड़ा या कैसे है? हाँ, जो प्रोफेशनल्स के लिए क्या रोल है आईपीओ की जर्नी में वो वो बाकी है। पहले मेरे ख्याल से कर लीजिए। ठीक है। हाँ, हाँ, वो I कर think लीजिए, फिर लास्ट में एक साथ फिर अपन डिस्कशन करेंगे। हाँ, मैंने क्या क्वेश्चन इससे पूछा कि सबका कैमरा ऑफ हो गया, मेरे को लगा भाई ऐसा तो नहीं इतना बोरिंग है कि सब सो गए। नहीं, वी आर लिसनिंग ए सुपर प्रेजेंटेशन। हाँ, आई थिंक मतलब अगर ठीक लग रहा हो तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी शुड नहीं, सुपर प्रेजेंटेशन No, no, रजत जी, Benji, वी आर yeah, it is very, very Nicely practical explained. tips and very nice, very nice. nicely Thank you. super presentation, nicely explained and in simple language, lucid language, and Thank you are you. linking with the real life scenario. That's great. So I think आप वो भी कर लीजिए, बाद में एक साथ फिर क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे अच्छे से। श्योर। आई थिंक जो लास्ट सेक्शन में कवर करना चाह रहा था बिफोर कमिंग टू द आईपीओ लैंडस्केप इज दैट एज अ प्रोफेशनल हम अपना रोल कहाँ देख सकते हैं। तो मैंने इसमें प्रोफेशनल फैटर्निटी के लिए 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है कि अगर हमारा क्लाइंट या लार्जर लेवल पे आईपीओ एज एन एडवाइजरी हम एज वर्टिकल भी अगर अपन अपने प्रैक्टिस में रखना चाहें तो 3 पार्ट्स में उसको देख सकते हैं। पहला तो प्री आईपीओ कंसल्टेशन, यानी जो कंपनी आईपीओ के लिए अभी मन बना रही है उसमें एक प्रोफेशनल क्या क्या वैल्यू ऐड कर सकता है। दूसरा, आईपीओ के प्रोसेस के दौरान ड्यू डिलिजेंस के अंदर प्रोफेशनल क्या हेल्प कर सकता है। और तीसरा, लिस्टिंग होने के बाद या फंड रेजिंग के बाद भी प्रोफेशनल किस तरह से अपने रोल को आगे बढ़ा सकता है। सो प्री आईपीओ कंसल्टेशन में मुझे नजर आता है कि एक तो आई थिंक बिहेवियरल लेवल पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक प्रोफेशनल कंपनी को इक्विटी फंड रेजिंग भी एडवाइस करे एज अ टूल फॉर रेजिंग कैपिटल एंड अनलॉकिंग वैल्यू। काफी समय हम कोशिश करते हैं कि कंपनी को लार्जली डेट के तौर पे ही गाइड करें क्योंकि वो आसानी से थोड़ा मिल जाता है, या वो एक प्रमोटर का नोशन भी है कि यार वो मतलब इक्विटी कैपिटल मार्केट को लेके उनके थोड़ा सा एक फियर है। सो आई थिंक इम्पोर्टेंट ये है कि एज ए प्रोफेशनल हम इक्विटी फंड रेजिंग एज अ टूल एडवाइस करें कंपनीज को, दोनों ही पर्सपेक्टिव से, पैसा रेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और काफी वेल्थ मैनेजमेंट के एंगल से भी। आप देखेंगे ज्यादा कदा काफी ऐसी कंपनीज लिस्ट होती है जिनको पैसे रेज करने की पर से जरूरत नहीं है, राइट, बट स्टिल दे कम फॉर एन आईपीओ। लार्जली उनका वेल्थ क्रिएशन का माइंडसेट है। अभी हम एक आईपीओ कर रहे हैं जिसमें कंपनी का 350 करोड़ रुपए का टर्नओवर है और करीब 40 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है और हर साल करीब 50-55 करोड़ रुपए के कैश फ्लो जनरेट करते हैं और आने वाले 100 करोड़ रुपए के एक्सपेंशन के लिए उनको बाजार से 1 रुपया नहीं चाहिए। डेट फ्री कंपनी है, इससे लिया लिस्टिंग, क्योंकि फार्मा सेक्टर्स हैं उनको लगता है कि यार अभी हम लिस्ट करा ले तो हम 300 करोड़ रुपए से 500 करोड़ रुपए का टर्नओवर तो ले जाएंगे इंटरनल कैश फ्लो से, पैसा वैसा नहीं चाहिए बाजार से। बट जब 500 करोड़ रुपए से हमको 1000 करोड़ रुपए बनना होगा तो यही ट्रैक रिकॉर्ड हमको हेल्प करेगा पैसा रेज करने में। सो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि हम एज ए प्रोफेशनल कंपनीज को ये बताएं कि सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं, सिर्फ वैल्यू को अनलॉक करने के लिए और ब्रांड बिल्डिंग के लिए भी लिस्टिंग एज ए टूल काम आ सकता है। दूसरा, मुझे लगता है कि काफी जगह जहाँ पे बैंक फंडिंग हो रही होती है वहाँ पे इक्विटी कंट्रीब्यूशन वाला जो पार्ट है उसके लिए भी प्रोफेशनल एडवाइस कर सकते हैं कि ये वाला पार्ट आप आईपीओ के थ्रू सोर्स कर सकते हो। सो इट इज नॉट दैट द प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मतलब कैन नॉट कम थ्रू अ पब्लिक इशू, it's like the equity contribution from the on the bank proposal can come from the public issue as well. So that is also one of the approach. थर्ड, आई थिंक एक लो कॉस्ट वर्किंग कैपिटल के तौर पे भी हम बैंकिंग ऑल्टरनेटिव्स के सामने आईपीओ या इक्विटी फंड रेजिंग को सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई बिलीव कि काफी कंपनीज ऐसी हैं जो कि एक्विजिशंस करना चाहती है, उनकी नजर में कोई सिक यूनिट है, उनकी नजर में कोई एक दूसरा एक्विजिशन का टारगेट है। आईपीओ आपको अलाउ करता है कि आप एक्विजिशन को भी अपना एक ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू बना सकते हैं। तो अगर हमको लगता है कि कोई कंपनी है जो कोई एक्विजिशन का माइंड बना रही है उसको हम पब्लिक इशू के थ्रू एड्रेस कर सकते हैं। एक लिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स को स्वैप कर सकती है एक्विजिशन के लिए बिना 1 रुपए का करेंसी का आउटफ्लो करे, विच इज वेरी क्रिटिकल। अगर आप सन फार्मा इसका आपका रैनबैक्स से इसका मर्जर देखेंगे तो टोटली इट वाज ए नॉन कैश शेयर स्वैपिंग। सो आई वुड पुट इट दैट वे कि हम लिस्टेड कंपनी को या हमारे क्लाइंट को समझा सकते हैं कि आप लिस्टेड हो ना, तो आप अपने एम्प्लॉयज को ईसॉप देने के लिए, एक सीएफओ की सैलरी का पार्ट ईसॉप के तौर पे बनाने के लिए, किसी कंपनी को एक्वायर करने के लिए, शेयर्स को प्लेज करने के लिए अपने शेयर्स को टूल यूज कर सकते हो एज ए करेंसी।
विच इज वेरी क्रिटिकल। सो आज मुझे लगता है कि मुझे 50 करोड़ रुपए का एक्विजिशन करना है जो कि अनलिस्टेड कंपनी प्योर कैश में ही कर सकती है, जबकि एक लिस्टेड कंपनी हो सकती है उसको कैश इन स्टॉक की डील बना दे, 20 करोड़ रुपए का कैश या 30 करोड़ रुपए के स्टॉक स्वैप हो जाए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सक्सेशन प्लानिंग मैंने ऑलरेडी बताया कि जहां पे हमको लगता है कि कंपनीज का एक क्लियर कट सक्सेशन प्लान नहीं है 10 साल बाद का, वो लिस्टिंग करा सकती है ताकि एक लेवल के बाद में प्रमोटर्स कैन रिटायर एंड कंटिन्यू एज अ शेयर होल्डर एंड द कंपनी कैन फंक्शन थ्रू अ प्रोफेशनल बोर्ड। इस तरह से बिजनेसेस को एक लॉन्जिविटी मिल जाती है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन अगर जहाँ पे विजिबिलिटी नहीं है और काफी जगह आजकल नेक्स्ट जनरेशन कन्वेंशनल बिजनेस में आना भी नहीं चाहते, तो एक सक्सेशन प्लानिंग के तौर पे भी लिस्टिंग एक एडवाइजेबल टूल है। और आई थिंक क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए भी लिस्टिंग का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक लिस्टेड कंपनी एनीवेज एक नॉच ऊपर उसकी क्रेडिट रेटिंग होती है विज द सेम साइज अनलिस्टेड कंपनी। सो आई थिंक प्री कंसल्टेशन लेवल पे, प्री इशू लेवल पे इस तरह के एवेन्यूज हैं जहाँ पे एक प्रोफेशनल अपने क्लाइंट को इन एरियाज के लिए आई वुड से आईपीओ एज अ रूट सजेस्ट कर सकता है। ड्यूरिंग द ड्यू डिलिजेंस काफी ऐसे रोल है जो प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट से किटी में ही आते हैं। पहला मैंने इंपॉर्टेंट जो अभी बताया भी कि मर्चेंट बैंकर के साथ में इश्यूअर कंपनी के बिहाफ पे या इश्यूअर कंपनी के साथ जॉइंटली डिस्कशंस करना, ये एक इंपॉर्टेंट रोल है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे प्रोफेशनल कम्युनिटी बहुत आसानी से निभा सकती है। अगर हमने कंपनी को तैयार किया है तो पूरा डिस्कशन हम लीड कर सकते हैं, क्योंकि 90% प्रमोटर्स मैंने जितने भी आज तक देखे हैं वो नॉन टेक्निकल और नॉन कैपिटल मार्केट बैकग्राउंड से होते हैं। तो वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल है जहाँ पे हम अपने क्लाइंट्स को हैंड होल्ड कर सकते हैं मर्चेंट बैंकर्स के साथ होने वाले इनिशियल डिस्कशंस के अंदर, और डिस्कशन को हम नेविगेट कर सकते हैं सब्जेक्ट टू हमने उन एरिया की तैयारी कर ली हो जिसपे एक मर्चेंट बैंकर कंपनी को वाउच करेगा। सेकंड, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग और कॉर्पोरेट एक्शन जो आईपीओ से पहले होते हैं, बोनस इश्यूज होते हैं, कैपिटल का कंपनी का कन्वर्जन होता है, कैपिटल की रीस्ट्रक्चरिंग होती है, प्रमोटर ग्रुप का रिक्लासिफिकेशन होता है, इन सब जगह भी प्रोफेशनल के तौर पे हम कैपिटल स्ट्रक्चरिंग और कॉर्पोरेट एक्शंस के अंदर काफी रोल निभा सकते हैं। आईपीओ डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पब्लिक इशू की चेकलिस्ट है, आई वुड पुट इट दैट वे कि उसमें 25-30% डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो प्रोफेशनल आराम से कंपनी के साथ कोऑर्डिनेशन बना सकता है और वो मर्चेंट बैंकर को दिए जा सकते हैं। So this typically becomes another avenue of offering service or revenue or fees whereby the IPO process can be very well divided into two parts, that merchant banker company and the professional becomes an intermediary which manages the IPO documentation process। मतलब एक रूटीन आईपीओ प्रोसेस में 25 से 30 सर्टिफिकेट जाते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स के, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इशू कर सकता है और डॉक्यूमेंटेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि रिजर्व्ड है पीयर रिव्यूड ऑडिटर के लिए वो है रीस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। किसी भी कंपनी के अंदर जो आईपीओ के लिए आ रही हो, पिछले 3 साल के अकाउंट्स को रीस्टेटमेंट करना पड़ता है और कोई भी पीयर रिव्यूड फर्म ही कर सकती है। सो आई थिंक पीयर रिव्यू की सर्विस भी एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है किसी प्रोफेशनल के लिए आईपीओ जर्नी में अपने क्लाइंट्स के लिए। आई थिंक पोस्ट इशू लेवल पे जब एक कंपनी लिस्ट हो जाती है तो आई वुड पुट इट दैट वे कि इट इज लाइक एक कंपनी अब अपना एक रूटीन बना चुकी है। एक कंपनी जब लिस्ट हो जाती है तो डेफिनेटली यदा कदा साल 2 साल में किसी ना किसी मेथोडोलॉजी के साथ में फंड रेजिंग ट्राई करती रहती है, या तो राइट्स इशू लाएगी या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट लाएगी या फिर बोनस स्प्लिट करेगी। तो फ्यूचर में आने वाले सारे फंड रेजिंग के एवेन्यूज के अंदर वो प्रोफेशनल पार्टिसिपेट कर सकता है, एडवाइस कर सकता है। कोलेटरल क्रिएशन के तौर पे एक लिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स को यूज कर सकती है कोलेटरल के तौर पे डेट एनबीएफसी के थ्रू रेज करने के लिए। पीएसयू बैंक्स भी शेयर्स के ऊपर प्लेजिंग अलाउ करते हैं। तो ये भी एक एडिशनल एवेन्यू है जहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने कंपनी को एडवाइस कर सकते हैं कोलेटरल क्रिएट करने के लिए, जिसके ऊपर फर्दर फंडिंग ली जा सकती है। रूटीन ऑडिट और सर्टिफिकेशन तो एक आई वुड से एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पोस्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए कि एक लिस्टेड कंपनी क्वार्टरली ऑडिट्स करती है, क्वार्टरली सर्टिफिकेट्स एक्सचेंज में जमा करती है, तो उसके साथ में काम बहुत ज्यादा होगा। विजिबल अनलिस्टेड कंपनी जो कि साल में सिर्फ एक बार ऑडिट करेगी और बैंक्स को 6-6 महीने में सर्टिफिकेट देगी। तो आज एक क्लाइंट को लिस्ट कराने से ना सिर्फ हम एज ए प्रोफेशनल काफी अपॉर्चुनिटीज ओपन करते हैं, बट उसकी एक लॉन्जिविटी और उसका एक रिकरेंस ऑफ इनकम भी हमारे लिए मल्टीपल 4 टाइम्स बढ़ जाता है। So I think ये 3 पैरामीटर्स थे where I feel that professionals have a very important role in the entire IPO process। और उसके अलावा ऑफ कोर्स किसी भी अपने लर्नड प्रोफेशन को 1-to-1 को डिस्कशन करना होता है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू गाइड कि किसमें क्या कर सकते हैं। On the last part, I think I will come to which sectors are presently in focus for raising money, how the different IPO landscape is now visible in the market। So अगर हम देखते हैं तो पिछले 1 साल के पीरियड में 1 अगस्त से 24 अगस्त तक करीब
100 IPOs DRHP फाइल हुए हैं, जिसको हमने सेक्टर वाइज क्लासिफाई किया कि कौन से सेक्टर से क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो आप देखेंगे तो लार्जली बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से एक मेजर चंक फाइल हुआ है, हेल्थ केयर एंड फार्मा से सेकंड स्टेज पे सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, उसके बाद में केमिकल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, कंज्यूमर फूड्स और ऑटो कंपोनेंट्स एंड ऑटो एंसिलरीज। सो लार्जली आप देखेंगे तो रफली 50-55% टोटल कंट्रीब्यूशन इन्हीं 5 सेक्टर का है। तो हम कहीं ना कहीं ये एनविसाज कर रहे हैं कि ये सेक्टर्स फ्लेवर में हैं। इसके अलावा आई वुड से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, रेस्टोरेंट्स जो QSR सेगमेंट में है, जैसे कि जम्बो किंग या फिर बारबेक्यू नेशन, इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स की कंपनी, डिफेंस सेक्टर की कंपनी, सीमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी। सो लार्जली आप देखेंगे कि ये सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर IPO की प्रेजेंस हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स भी हैं इसमें जिनका रिप्रेजेंटेशन तो कम है, बट एक नए तरीके के सेक्टर हैं। तो आई वुड से एक कार डीलर ने अभी मेन बोर्ड पर IPO फाइल किया है, मार्केट की तेजी कहें या जो भी हम इसमें कहें, बट एक कार डीलरशिप की कंपनी ने भी IPO फाइल किया, विच इज अ न्यू सेक्टर। हो सकता है आज हमारे कुछ क्लाइंट्स हों कार डीलरशिप में, या हर सिटी के अंदर काफी बड़े कार डीलर्स होते हैं, तो उनके लिए भी IPO की अपॉर्चुनिटी है। अभी जैसे मैं बताया, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज ने IPO फाइल किया है। वेस्ट मैनेजमेंट एक नया सेक्टर है, क्लीन एनर्जी का या वेस्ट मैनेजमेंट का, जहाँ पे फाइलिंग्स हुई है। सो आई थिंक ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे अभी कैपिटल मार्केट के ऊपर प्रेजेंस हैं, और ये सिर्फ एक लिस्ट है टेंटेटिवली बताने के लिए कि हम कौन कौन से सेक्टर्स को माइंड में रख सकते हैं जब हम IPO की थॉट प्रोसेस अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं। ये एक पाई चार्ट रिप्रेजेंटेशन है कि लार्जली यही सेक्टर किस तरह से एज अ कंट्रीब्यूशन नजर आ रहे हैं। ये एक छोटी सी समरी है जो पिछले आई वुड से IPOs के अंदर कि करंट एप्टस वैल्यू जो लास्ट शेयर जो कंपनी लिस्ट हुई उसमें किस तरह से सब्सक्रिप्शन का ट्रेंड रहा इंडिविजुअल लेवल पे, और अल्टीमेटली टोटल सब्सक्रिप्शन किस तरह से प्लेन आउट हुए। सो इट इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। लार्जली ये एक IPO सब्सक्रिप्शन स्टेटस का एक एनालिसिस है, शॉर्ट एनालिसिस कि पिछले 1 जनवरी 2021 से लेकर 24 अगस्त तक करीब 17,000 करोड़ रुपए के फंड्स रेज हुए हैं। एवरेज IPO सब्सक्रिप्शन 55 टाइम का रहा है। लार्जली अगर आप देखेंगे तो एवरेज इशू साइज 1800 से 2000 करोड़ रुपए रही है। ऑफ कोर्स कुछ बड़े इश्यूज रहे हैं, जोमेटो जैसे कुछ छोटे इश्यूज भी रहे हैं 300 करोड़ के। ऑन एन एवरेज 68-70% कंपनीज प्रीमियम पे लिस्ट हुई है, और करीब 74% कंपनीज अपने लिस्टिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रही है एज ऑन डेट। और ऑफ कोर्स इसका ऑन द अपोजिट साइड 26% कंपनीज अपने जो इशू प्राइस है, लिस्टिंग प्राइस है, उससे नीचे ट्रेड कर रही है। सो आई थिंक प्रेजेंटेशन लेवल पे दिस इज ऑल आई हैड टू शेयर इन टर्म्स ऑफ डिवाइडिंग दी जर्नी फ्रॉम एक लिस्टेड कंपनी के तौर पे अनलिस्टेड कंपनी के तौर पे कौन से टूल्स एंड मेथड्स हैं, प्रोफेशन के तौर पे क्या रोल है, और अभी IPO का करंट लैंडस्केप किस तरह से चल रहा है। सो आई थिंक अशोक जी, महेश्वरी जी, आई एम डन फ्रॉम माय पार्ट, ओवर टू यू। Yeah, Rajat ji, it was great presentation. I can say it was superb and nicely explained in simple language. And the best part, you have covered every aspect of this topic, capital raising. As we know that it fits with your name, Rajat ji, because जो डॉक्टर होता है ना, वो पूरा बॉडी का पूरा एक्सरे कर लेता है कि किधर से क्या होने वाला है, किससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्या आपको अगर कुछ हो जाए प्रॉब्लम तो कैसे हैंडल करना चाहिए, उसको होने के बाद में भी उसको कैसे आपको बिहेव करना चाहिए। तो लाइक दैट यू हैव कवर्ड, आपने भी आपने वो पूरा एक्सप्लेन किया है what should be done as far as capital raising is concerned. Before capital raising को अपने को क्या करना चाहिए, at the time of raising what issues should be handled and how it should be handled later on. So you have covered all the aspect about capital raising, and the base part you have given example of the real life. That is the most important thing, because we can understand that how things happen. And today's time it was great, Rajat ji, मजा आ गया, बस आज मैं वही कह सकता हूँ। And two more thing which I will like to highlight, which you explained properly and nicely, is that एक जो अभी टाइम है उसमें हम प्रोफेशनल को भी डिफरेंट एवेन्यू चाहिए। तो आपने जो बताया अभी कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, प्रोफेशनल के लिए कहाँ अपॉर्चुनिटीज है, और आपने क्लियरली अच्छे ढंग से समझाया।
So that was great. So it will help us a lot. And I can say this is and one more thing which I will like to say. आपको पता है कि जो अनलिस्टेड कंपनीज के लिए जरूरी नहीं है कि आईपीओ जाना और उधर से पैसे करना. For listed companies also there are many avenues by which we can maximize the value. So from all that angle, I think it was superb, and I think all my participants will agree with this. And now I will request एक तो रजत जी बोल दूं यहाँ पे जो participants है ना, each and everyone is expert. So and they will need your services anytime. So from that angle, I will now request all the participants. You can put your queries to Rajat ji, who will explain it. To the Thank you your for the best. kind तो I रजत Thank जी, you, Rajat. रजत जी I एक think क्वेश्चन एक बार एक तो हमारे साथ में message राजेश जी भी है. राजेश जी भी is also expert from this field. So राजेश भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपका तो क्वेश्चन इस टॉपिक पे होना मस्ट है. फिर बंसल जी सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, पर राजेश भाई यू स्टार्ट विद योर क्वेश्चन. तो जी। रजत जी ऐसा है कि कोई एक कंपनी हम लेते हैं तो समझो वो डेट फ्री कंपनी है, तो वो डेट के लिए तैयार है या इक्विटी के लिए तैयार है, वो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करें, मतलब कैसे हमको उसको एनालाइज करना चाहिए एज ए प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट. यार राजेश भाई, सो आई थिंक इसमें इम्पोर्टेंट ये है, देखिए एज ए प्रोफेशनल पहला तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होगा कि प्रमोटर का ओरिएंटेशन हम कितना रीड कर पा रहे हैं. प्रमोटर कुछ ऐसे हैं जो इक्विटी मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे. सो अगर मैं आपकी जगह होता या हम दोनों साथ में किसी क्लाइंट से बात कर रहे होते तो आई वुड हैव सीन कि प्रमोटर कितना कंफर्टेबल है अपनी वेल्थ को बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है. कैन यू म्यूट? मिश्रा, आप सबको म्यूट कर देंगे एक्सेप्ट जो बोल रहे हैं उसके. मिश्रा जी. हाँ, थैंक यू. सो आई थिंक राजेश जी, आई वुड लुक इनटू अ कंपनी की उस प्रमोटर का वेल्थ शेयरिंग की क्या ओरिएंटेशन है. सॉरी. सो आई थिंक एक तो मैं ये देखूंगा राजेश जी कि वो कंपनी आने वाले 3 से 4 साल में क्या ग्रोथ करने वाली है. कैपिटल मार्केट की कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन 15 से 25% की ग्रोथ रेट की तो रहती है. अगर कोई कंपनी इससे कम कर रही है तो लोगों को लगता है कि यार ये पैसा तो फिर मैं म्यूचुअल फंड में लगा दूंगा, 12-13% तो वहां पे भी ग्रो कर जाएगा. तो कोई कंपनी 15 से 25% ग्रो कर रही है, देन इट वुड मेक सेंस फॉर एनी कैपिटल मार्केट जर्नी. दैट इज वन पॉइंट. तभी कोई इन्वेस्टर को उसको रेस्पॉन्स भी मिलेगा. दूसरा मुझे लगता है कि कैपिटल मार्केट के तौर पे प्रमोटर का क्या ओरिएंटेशन है. क्या वो कैपिटल मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है, एक तो रिटर्न्स की, दूसरा कंप्लायंस की, तीसरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, क्या वो मेंटेन कर पाएगा. क्या वो प्रमोटर ऐसा है कि अपने साथ में एक टीम, चाहे छोटी हो या बड़ी, बट लेके चल सकता है और क्वार्टरली हाफ ईयरली ऑडिट्स कर लेगा. मतलब काफी कंपनीज है जहाँ पे मतलब मार्च की बैलेंस शीट अगस्त सितंबर तक भी मतलब सीए पीछे पड़ जाता है, बोल देता है कि अभी नहीं दोगे तो फिर मैं आपका काम छोड़ दूंगा, तब जाके तो वो बन के आती है. तो ऐसी कंपनी को आईपीओ मार्केट में लेके जाना अपने लिए भी चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि वो आईपीओ का प्रोसेस ही उनके लिए एक ट्रबल समय है. तीसरा मुझे लगता है कि कंपनी का अगर बेसिक रेशोज हेल्दी हैं, कंपनी के बेसिक ग्रोथ के प्लान्स सिक्योर हैं, और उनको सिर्फ ये नहीं लग रहा है कि यार हमको तो थोड़ा बड़ा पैसा मिल जाए कहीं से तो हम डेट रीपे कर दें, या थोड़ा पैसा मिल जाए तो सब हम अपने एक ऑडी खरीद ले, कार खरीद ले, अपने एक घर खरीद ले. अगर प्रमोटर का माइंडसेट लंबा है तो मुझे लगता है कि इररेस्पेक्टिव उस कंपनी का 20 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है या 200 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, एक बार के लिए उसको पब्लिक इशू का एंगल बताना चाहिए कि यार देखो पब्लिक इशू के ऑप्शंस हैं, आप एक्सप्लोर करना चाहोगे क्या, इसके ये एडवांटेजेस हैं बट ये चैलेंजेस हैं, कंप्लायंस हैं, आपको शेयरहोल्डर्स की एक्सपेक्टेशन फुलफिल करनी पड़ेगी, और ये कुछ एक्सपेक्टेशन मार्केट की हाइजीन फैक्टर पे रहती है. तो प्रमोटर को का जवाब अगर पॉजिटिव आता है कि हाँ यार क्यों नहीं, मतलब हमको बाजार में अगर बड़ा बनना है तो बाजार में तो आना ही पड़ेगा, तो चलो अभी शुरुआत करते हैं. तो अगर वो पहला स्टेप थोड़ा सा प्रोएक्टिवली लेता है तो आई थिंक फिर एडवाइस करने का रोल बनता है. और अगर आपको लगता है कि यार वो तो पहले पॉइंट पे इस तरह से बात कर रहा है कि यार नहीं जी यार अपन तो पैसा ले लो, बताओ कितने का आईपीओ ला सकते हो और कितना पैसा बाजार से मिल सकता है, और अपन तो फिर ठीक है अपन तो अपना धंधा कर लेंगे दरवाजा बंद करके, तो शेयर्स का क्या होना है नहीं होना वो छोड़ो आप. तो उस केस में फिर आपको लगे यार ऐसी कंपनी को मैंने एडवाइस कर भी दिया तो आज अल्टीमेटली मैं ही अपने क्लाइंट या तो खराब भी करूंगा या फिर मैं अपना नाम बाजार में खराब कर दूंगा, यार मैं क्या आईपीओ लेके आ गया जिसने वेल्थ नहीं क्रिएट करी, डिस्ट्रॉय कर दी. तो मुझे लगता है कि किसी भी लेवल पे हमको एक आइडिया तो ड्रॉप करना चाहिए. कंपनी कैसे उस आइडिया पर रिएक्ट करती है दैट इज वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड कि उसमें आईपीओ का पोटेंशियल है या नहीं. थैंक यू. हाँ बंसल जी.
थैंक यू राजेश। हाँ बंसल जी, आप अनम्यूट करिए। रजत जी, बंसल जी इज आवर सीनियर मोस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी जी हाँ, इज वेरी एक्टिव। हाँ बंसल जी। Rajaji, you have very nicely explained everything about the IPO थैंक यू and the role of chartered accountants. My only query is about the valuation at which the IPO is coming. Three questions are there: whether it is fairly valued, whether it is undervalued, or whether it is overvalued. Why I am raising this question? The chartered accountant community comes into picture immediately, and once the IPO is successful or not successful, the role of chartered accountant is always challenged. That it was overvalued, it was undervalued, there was nothing left on the table, and all sorts of questions are coming after the IPO. So how you determine the value, the fair value of the IPO? राइट Sure, Because sir. the entire community of chartered accountant is fraternity is involved on that one particular word, that is valuation. राइट Sorry, I mean for my outburst. नहीं नहीं, इसमें तो कोई सर चैलेंज ही नहीं है। आई थिंक वी शेयर द पेन, क्योंकि लार्जली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ साथ मर्चेंट बैंकर्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है कि वैल्यूएशन कम लाए, ज्यादा लाए, क्या करा। सस्ता आईपीओ लेके आ जाओ तो प्रमोटर पीछे पड़ जाता है कि यार आपने सस्ते में बिकवा दिया, महंगा आईपीओ लेके आ जाओ तो इन्वेस्टर पीछे पड़ जाता है कि आप महंगा लेके आ रहे हो। तो आई थिंक वो सेम पेन शेयर करते हैं, क्योंकि आईपीओ में तो लार्जली जो वैल्यूएशंस हैं वो मर्चेंट बैंकर ही ड्राइव करता है। वैल्यूएशन सर्टिफिकेशन के हिसाब से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट है, बट आई थिंक ये फेयरली अज्यूम करना कि आईपीओ का वैल्यूएशन फेयर है या अनफेयर है, इसने टेबल पे कुछ छोड़ा है नहीं छोड़ा, ये बहुत एक सब्जेक्टिव कॉल है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम एक शॉर्ट टर्म असेसमेंट करेंगे तो ये डिस्कशन हरदम रहेगा। हमको लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी, और इसके साथ साथ में एज ए इन्वेस्टर या एज ए प्रोफेशनल हमको अपना इन्वेस्टमेंट हॉराइजन भी देखना पड़ेगा कि आप इस आईपीओ की वैल्यूएशन किस पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से कर रहे हैं। क्या आप लिस्टिंग गेन के लिए देख रहे हैं, क्या आप एक शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए देख रहे हैं कि यार मैं 2-3 साल इन्वेस्टेड रहने के लिए रेडी हूँ, या आपको लगता है कि मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहने के लिए रेडी हूँ। सो आई थिंक फॉर दैट मैटर, एज अ मैटर ऑफ केस, अगर मैं ये बोलता हूँ कि सबसे इस टाइम का जो कंट्रोवर्शियल या टॉक्ड अबाउट आईपीओ था जोमेटो, वो इसी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएट करेगा कि वो फेयरली वैल्यूड था या ओवर था या अंडर था। कुछ लोगों ने बोला वो ओवर वैल्यूड है तो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उनको बाद में पेन हो गया कि यार ये तो 72 रुपए का आईपीओ 130 हो गया, मैं तो 50% का लॉस हो गया। कुछ लोग 135 पे इन्वेस्ट हो गए तो करेक्ट होकर वो 108 हो गया, तो उनको वहां पेन हो गया कि यार मैं तो अभी घुसा था और मैं तो लॉस लग गया। सो आई वुड पुट इट दैट वे कि अगर मैं ये देखता हूँ कि मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन लिस्टिंग गेन का है, तो लिस्टिंग गेन को भापने का तो सिंपल सा तरीका है कि आप ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लीजिए, आप आईपीओ के सब्सक्रिप्शन का पैटर्न देख लीजिए और मैक्रो सिचुएशन देख लीजिए। अगर मैक्रो एनवायरनमेंट बुलिश है, सारे आईपीओ मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स उनकी लिस्टिंग गेन हो रहा है, और ग्रे मार्केट में अच्छी हवा है आईपीओस की, एप्लीकेशंस की, मैं मतलब ये एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, इट इज जस्ट अ पैरामीटर टू टेक अ डिसीजन। तो आप ये मान सकते हैं कि फेयरली लिस्टिंग गेन हो जाएगा। अब लिस्टिंग गेन के अंदर आपको कंपनी का क्वालिटी क्या है, वो आईपीओ क्यों ला रही है, डेट रीपे करेगी, ऑफर फॉर सेल है, 99% रिटेल इन्वेस्टर्स को तो पता भी नहीं होता। तो क्वेश्चन ओवर अंडर वैल्यूएशन का आता ही नहीं है, क्योंकि वो तो कंपनी का डीआरएचपी तक नहीं खोलते। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम तो केपेबल है वो कंपनी का 300 पेज का डीआरएचपी खोल के पैरामीटर्स पढ़ने में कि यार कंपनी कर क्या रही है, करना क्या चाहती है लॉन्ग टर्म में। सो लिस्टिंग गेन अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है, तब तो आप सिंपल ग्रे मार्केट प्रीमियम से जाइए, मार्केट सिनेरियो कैसा है आप उसके ऊपर जाइए, और फिर उसके बाद में तीसरे पैरामीटर पर देखिए कि कंपनी करती क्या है। दैट इज वन पॉइंट। सेकेंड, अगर आपको लगता है कि कंपनी के अंदर मैं साल से 2 साल तक स्टे करने का पेशेंस रखता हूँ, तो हमको इस ऑर्डर को चेंज करना चाहिए, और हमको ऑर्डर में पहले लेके आना चाहिए कि कंपनी की क्वालिटी क्या है, कंपनी आने वाले 2 साल के अंदर बिजनेस क्या करेगी, और इस आईपीओ के बाद में उसकी परफॉर्मेंस कैसे रहेगी। अगर आप देखेंगे तो इंडिगो इसका एक क्लासिक एग्जांपल है, जिसको मैं अपने मतलब काफी सेशंस के अंदर बात करता हूँ कि इंडिगो उस पॉइंट पे अपना आईपीओ लेके आया है जहां पे उसका बिजनेस पीक पे था, और इन्वेस्टर्स ये सोच रहे थे कि इंडिया में तो एविएशन इंडस्ट्री खुलने ही वाली है, फ्लाइटें तो बढ़ने ही वाली है, लोग तो ट्रैवल करेंगे, तो सब कूद के इंडिगो में घुस गए, और 1-1.5 साल तक जो वेल्थ इल्यूजन इंडिगो के आईपीओ ने करा, वो सब जानते हैं कि मतलब वो 1200-1300 रुपए का कितने टाइम तक 600-700 रुपए पर रोता ही रहा, और लोग थक हरा के परेशान हो गए। तो अल्टीमेटली हमको ये देखना है कि अगर मैं 2 साल के लिए उसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ,
तो 2 साल में कंपनी क्या कर रही है? अरे भाई ये तो पूरा का पूरा बिजनेस की पीक पे आ रही है, जब सेक्टर के अंदर कंपटीशन बढ़ने वाला है तब ये लिस्ट हो रहे हैं। आईपीओ से पहले इन्होंने बम्पर डिविडेंड दे दे के प्रमोटर्स अपने अपने पैसे प्रॉफिट्स विड्रॉ कर लिए, तो इन्वेस्टर के लिए छोड़ के आ रहे हैं। तो उस केस में लिस्टिंग गेन हो जाए या नहीं हो जाए वो एक सेकंड पॉइंट है, बट ऐसी कंपनी में हो सकता है मैं 2-3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। 10 साल में हो सकता है इंडिगो 10 टाइम्स हो जाए, आई कांट से, राइट। vis-a-vis आई वुड पुट इट द थर्ड वे अराउंड। लेट्स से अगर मैं आईपीओ देख रहा हूँ बर्गर किंग का, तो बर्गर किंग में आज देख रहा हूँ कि एक लोकल फ्लेवर के तौर पे मैकडी और फॉर एग्जांपल पिज्जा हट का एक कॉम्पिटिटर है, प्राइस पॉइंट एफिशिएंट है, बुक्स ठीक है, टर्न अराउंड स्टोरी है, एफिशिएंटली कैपिटल मैनेज कर रहा है, और मुझे पता है कि कितना बिकता है। मैं देखता हूँ हर स्टेशन पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एफिशिएंट मॉडल है, छोटी दुकान बनाते हैं वहाँ पे काम करना चालू कर देते हैं। सो आज मुझे लग रहा है कि 3 साल के अंदर ये थीम है ही, जब आप और मैं सड़क किनारे वड़ा पाव खाने की जगह बर्गर किंग का 25 रुपए का वो बर्गर खा लेंगे। तो हर दिन तो मैं मैकडी का 100 रुपए का बर्गर नहीं खा सकता, और मैं एज अ इंडियन कम्युनिटी अब प्रेफर करता हूँ कि सड़क की चीज छोड़ के थोड़ा तो मैं हाइजीन खाऊं। तो बर्गर किंग एज अ 5 साल की स्टोरी में बहुत फिट बैठता है। तो अगर मैं 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो एक अच्छी स्टोरी है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आईपीओ पे अंडर वैल्यूड है ओवर वैल्यूड है। सो आई वुड पुट इट योर क्वेश्चन इन अ वे दैट लार्जली आपको इन्वेस्टर के तौर पे पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, तभी सारे क्वेश्चन ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन के आएंगे। लार्जली कुछ आईपीओ आपको फेल्ड ही दिख जाएंगे कि ये टेबल पे काफी वैल्यू छोड़ रहा है, जैसे डीमार्ट एक इसका क्लासिक एग्जांपल है। आईपीओ के ऊपर ये एविडेंट था कि अच्छा बिजनेस है, बढ़िया रेशियोज हैं, उसके बावजूद भी कंपनी अपने आप को जो दूसरे उसके पीयर्स है उसके सामने सस्ता लेके आ रही है। तो हर जगह ये एविडेंट था, हर रिसर्च रिपोर्ट में, कि डीमार्ट इज कमिंग एट अ वेरी हेल्दी वैल्यूएशन एंड लिविंग टू मच रीजनेबली अमाउंट फॉर इन्वेस्टर्स। तो एक अच्छा बिजनेस मुझे सस्ता मिल रहा है तो मुझे उसको अंदर ऑल आउट जाना पड़ेगा। और उसका एग्जांपल हम सबको पता है कि 600 रुपए का शेयर 1200 लिस्ट हुआ, 1200 का 3000 हो गया। सो आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि आप बाजी किस पे लगा रहे हो, मतलब गधे पे घोड़े पे, पहले हमको वो डिसीजन करना है, और हम डरबी में लगा रहे हैं या हम एक छोटी सी रेस में लगा रहे हैं। अगर आप वो कर लोगे तो आई थिंक ये वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन का क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाएगा। ये आई थिंक ये अप्रोच होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन इन्वेस्टमेंट होराइजन अपना फिक्स करें। पॉइंट नंबर 2, लिस्टिंग गेन के लिए लगा रहे हैं तो ग्रे मार्केट की प्रीमियम्स की बात सुनिए, कंपनी क्या कर रही नहीं कर रही कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ लोग बोलते हैं कि हमने सुन लिया समझ लिया कंपनी बढ़िया है ये है। फिर तीसरा आईपीओ में तो वो पिट गई, तो फिर क्या हुआ? फिर अभी आपने 2 कंपनी तक तो आपने अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर ली थी, तीसरा आईपीओ में आपकी अंडरस्टैंडिंग ही फेल हो गई, राइट। अब जैसे मैं बोलूंगा कि एप्टस वैल्यू होम्स अभी एक आईपीओ आया था, हाउसिंग मार्केट का सेक्टर बुलिश है, हाउसिंग लोन्स बुलिश सेगमेंट में है। अभी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में कार्लाइल ग्रुप ने इतना बड़ा पैसा डाला, इंडिया के अंदर हाउसिंग मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट। और एप्टस एक फैंटास्टिक कंपनी है जो अपने पीयर्स के सामने फैंटास्टिक रेशियोज पे काम कर रही है। अब अनफॉर्चुनेटली मार्केट खराब था इसलिए उसका आईपीओ डिस्काउंट पे खुल गया, बट अगर मैं 5 साल तक हाउसिंग सेक्टर के ऊपर बुलिश हूं तो मुझे लगता है कि एप्टस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, किसी भी टाइम पे टर्न अराउंड होगी। सो आई वुड पुट इट दैट वे कि लार्जली मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर हाउसिंग सेक्टर को लेके मैं 3 साल बुलिश हूँ, इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर गवर्नमेंट का फोकस है, लोग ज्यादा से ज्यादा लोन ले रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में अभी रीजनेबल हैं, क्रेडिट फ्लो इमेंस है, और एप्टस जैसे प्लेयर जो अपने पीयर्स के सामने, आवास के सामने या दूसरे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के सामने अच्छे रेशियोज पे काम करे, मेरे पास कोई रीजन नहीं है ये बिलीव करने के लिए कि एप्टस यहाँ से 2 साल में हो सकता है एक टर्न अराउंड स्टोरी 2-3 साल की बन सकती है। सो आई थिंक दैट्स वेयर आई थिंक द एंटायर फोकस कम्स। Yes. Yeah. Anybody else? Rajat ji, I have 1 or 2 points wanted to have your more clarity. In your presentation, you mentioned about low cost source of working capital finance. And by and large, every one of we have been taught that equity is a costly source of finance. How do you resolve that point? A. Secondly, you mentioned about that it's a collateral creation opportunity also. Again, by and large, now perception is that ki anywhere, whenever promoters have put in their shares as a collateral, the share market will view it very badly from the second day onwards. So just give your yeah. Sure. I think thank you, Maheshwari, for the intelligent question. I think before coming to your question, I think I'll also acknowledge my other partner Jinesh is also on the call. He's just I think joined kuch late join kare. I think Jinesh Doshi is there. Jinesh comes with a healthy background on the legal and the compliance side. 15 साल तक he was part of legal and compliance with the BFSI group and he takes care of the transactional aspect of our firm. So I just thought कि मैं वो भी थोड़ा सा आप लोगों के knowledge में लाता हूँ. That Jinesh is also there. Coming to your point, Maheshwari ji, I think 2 पॉइंट है सर। एक तो पॉइंट है कि
काफी कंपनीज, मैं बोलूंगा कि अगर मैंने अपने करियर में 100 कंपनी से मुलाकात करी तो 10 कंपनीज या 7 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने एक अच्छे इंस्टीट्यूट से या कोई एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स के थ्रू या एफसीसीबी के थ्रू कोई 5-7% के ऊपर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करा रखी है। बाकी लार्जली सभी लोग 9 से 12% की रेंज में अपनी वर्किंग कैपिटल के लोन्स को सर्व करते हैं। अब एक ऐसी कंपनी जिसकी बिजनेस की रिटर्न रेशियोज ही 12-13% के हैं कैपिटल पे, वो 12-13% की एक इंटरेस्ट कॉस्ट सर्व कर रही है, तो हमारे पास एक रीजन है बिलीव करने के कि इसमें एक्चुअली बच कुछ नहीं रहा। 12% तो आप धंधे में कमा रहे हो, 12% तो आपका इंटरेस्ट की कॉस्ट सर्व कर रहे हो, तो आप बचा क्या रहे हो, घर पे तो कुछ नहीं लेके जा रहे हो, तो या तो आपका अदर इनकम से प्रॉफिट आ रहा होगा या फिर स्टॉक में कोई आप जोलजाल कर रहे होंगे। तो मेरे लिए बहुत आसान है समझना कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है, राइट। विज़ मैं अगर ये देखता हूँ कि इक्विटी के तौर पे एक कंपनी लेट्स से हाइपोथेटिकली 200 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, 200 करोड़ रुपए उसका लेट्स से 15 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। इस कंपनी को मैं बोलता हूँ कि आज तुम लिस्ट करा लो। इसके दो फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि मिश्रा जी, क्या आप एक बार बंसल जी को म्यूट कर सकते हैं? म्यूट कर दीजिए सबको। बंसल जी सबको म्यूट कर दीजिए। थैंक यू सर, आई थिंक वो हो गए। तो आई थिंक इसमें महेश्वर जी मैं क्या कहना चाहूंगा कि विज़ा एक कंपनी जिसका 15 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है और उसको ऑन एन एवरेज 25 से 30 करोड़ रुपए की लेट्स से वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। नॉर्मली अगर मैं 3-4 टाइम्स का रेशियो लेता हूं तो 40 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी उसकी। मैं इसको ये सजेस्ट करूंगा कि यार आप एक काम करो, आप अपनी लिस्टिंग प्लानिंग करो, ज्यादा नहीं, अभी लेट्स से 50-60-100 करोड़ रुपए जितने का भी आईपीओ आएगा, लीव असाइड द आईपीओ साइज, राइट। तो आई वुड से एक तो आपके इक्विटी के इन्फ्यूजन से बैंक आपकी बोरिंग कैपेसिटीज बढ़ा देगा, क्योंकि आपकी इक्विटी बढ़ गई तो प्रोपोर्शनली डेट का पोर्शन भी बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर आप लिस्ट हो गए तो आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, तो आपकी 9% की इंटरेस्ट रेट अब 8% बैंक ऐसे भी कर देगा। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम इमीडिएटली लिस्टिंग के बाद में मर्चेंट बैंकर एक कंफर्ट लेटर इशू करता है रेटिंग एजेंसी को कि कंपनी लिस्ट हो रही है, तो नेक्स्ट पेंडिंग रिव्यू के अंदर रेटिंग एजेंसी उसका एक नॉच इंप्रूव कर देती है जो रेटिंग पॉइंट है। तो उस लेटर से हम बैंक से नेगोशिएट कर सकते हैं कि यार आपकी 9.5% की कॉस्ट को आप रिड्यूस करके 8.5 करो, राइट। तो सेकंड फायदा ये हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि कंपनी को हम ये बोल सकते हैं कि यार आप 50 करोड़ रुपए जो अभी 40 करोड़ रुपए जो वर्किंग कैपिटल से फंड कर रहे थे, 12% की इंटरेस्ट कॉस्ट दे रहे थे, उसमें से 20 करोड़ रुपए आप आईपीओ का पैसे काम ले लो, और इस 20 करोड़ रुपए की जो आपकी सेविंग हुई, अगर इस पे आपका 13-14% का बिजनेस रिटर्न जनरेट हो रहा है, तो लार्जली वो बाकी के वर्किंग कैपिटल के लोन को कवर कर लेगा। सो अल्टीमेटली मैथमेटिकली मैं निकालूंगा तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा आएगी, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी आपको सर्व करनी है और भी दूसरे पैरामीटर्स हैं। बट कंपनी अगर 2-3 साल थोड़ा सा आई वुड से फाइनेंशियली खुद को फोकस रख के मैनेज कर ले, तो तीसरे साल से आईपीओ की प्रोसीड्स उसके लिए बहुत ही लो कॉस्ट वर्किंग कैपिटल साबित होगी, रादर देन डे वन। मैं डे वन पे सोचूं कि यार आप 25% स्टेक बेच के 20 करोड़ रुपए ले लो, तो प्रमोटर कंप्लेन करेगा यार 25% की वैल्यूएशन तो बहुत ज्यादा है। बट आई वुड पुट इट दैट वे कि यार आप इसको 5 साल के होराइजन में देखो। तीसरे साल से इक्विटी से जो आपने लिवरेज क्रिएट किया, एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट घटाने का, रेटिंग बढ़ाने का, और तीसरा आपने जो हाई कॉस्ट की बोरोइंग थी 13-14% की, उसको स्वैप कर दिया, इसके कोलेटरल इफेक्ट से आपको तीसरे साल से पैसा बनना चालू हो जाएगा। तो तीसरे चौथे साल ऑनवर्ड्स ये वर्किंग कैपिटल आपको सस्ती साबित होगी अगर आपने वर्किंग कैपिटल का सपोर्ट थोड़ा आईपीओ के थ्रू ले लिया तो। आई विल पुट इट दैट वे। मैंने कंपनीज देखी है, मैंने इनफैक्ट ऐसी कंपनी लिस्ट भी कराई है जिनका बैंक 20 करोड़ रुपए का प्रपोजल भी रो के पास कर रहा था और उनकी लिस्टिंग होने के बाद 30 करोड़ रुपए दे रहा है उनको। तो एक कंपनी जो 20 करोड़ रुपए ही नहीं अवेल कर पा रही थी, वो एडिशनल 10 करोड़ रुपए अवेल कर पा रही है, ये भी तो एक नया सोर्स ऑफ फंड हो गया। सो आई वुड पुट इट दैट वे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्किंग कैपिटल के तौर पे इन अ लॉन्ग टर्म आईपीओ प्रूव्स वेरी फैंटास्टिक सोर्स, अगर आप इसको ठीक से लेवरेज करो, रादर देन शॉर्ट टर्म थॉट से आओ कि यार फटाफट लाओ और फटाफट अपने तो इसको स्वैप कर लो। दूसरा मुझे जो लगता है महेश साहब, आपका जो क्वेश्चन था कि इन टर्म्स ऑफ प्रमोटर्स की कोलेटरल को मार्केट कैसे व्यू करता है। सो मार्केट ये फिनोमिना सालों से देखता आया है कि जब मार्केट ठंडा होगा तो प्रमोटर अपने शेयर्स को प्लेज करके पैसा रेज करेंगे, राइट। अगर इस चीज को मार्केट नेगेटिव परसीव करता है तो एट द सेम टाइम तेजी के मार्केट में जब प्रमोटर्स अपने शेयर प्लेजिंग को घटाते हैं तो उसको पॉजिटिवली परसीव करता है। तो मैं ये बोलूंगा वो दोनों तो बैलेंस हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि वो प्रमोटर शेयर प्लेज करके क्या कर रहा है। अब एक फाइन डे आई वुड से कि गति के प्रमोटर्स आते हैं और बोलते हैं हम शेयर प्लेजिंग करके साहब हम एयरलाइंस के धंधे में जाएंगे, तो मार्केट ने बोला यार तुम लॉजिस्टिक्स करते तब तुम एयरलाइंस करोगे, तुम मरवाओगे क्या, तुम शेयर्स पिटाई कर दो इनकी। एट द सेम टाइम अगर दूसरा प्रमोटर है वो शेयर्स को प्लेज करता है और वो प्लेज करके प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू पैसे को कंपनी में इन्फ्यूज कर देता है, तो मार्केट इसको पॉजिटिवली परसीव करेगा कि अल्टीमेटली इस प्रमोटर ने अपने शेयर्स को प्लेज करके ऑडी नहीं बनाई, अपना घर नहीं लिया, सिंगापुर घूमने नहीं गया, इसने धंधे में वापस पैसा लगाया। इसका धंधा
12-13% की रिटर्न कमा रहा है और प्लेजिंग के ऊपर 7% की कॉस्टिंग दे रहा है, तो ये इंटेलिजेंट डिसीजन है। तो हो सकता है इमीडिएट नीजर रिएक्शन में सेकंड डे मार्केट करेक्ट हो जाए, बट लॉन्ग टर्म के अंदर मार्केट उसको पॉजिटिवली ही परसीव करेगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जब आईपीओ मार्केट ठंडे थे तो एनएससी की टॉप 100 कंपनीज में से 72 कंपनीज में प्रमोटर्स ने अपने पर्सनल कैपेसिटी में शेयर्स प्लेज कर रखे थे और वही उनका सबसे बड़ा सोर्स था। आई थिंक अगर आप अडानी का ग्रुप पूरा देखेंगे तो अडानी ने अभी शेयर मार्केट में जब पैसा बना उससे पहले प्लेजिंग के थ्रू ही अपना पूरा धंधा बिजनेस ग्रो किया है। तो आई वुड पुट इट दैट वे कि शॉर्ट टर्म के अंदर प्रमोटर उस पैसे का क्या कर रहा है, दैट इज वेरी क्रिटिकल। अगर उसको सही तरह से यूज कर रहा है और मार्केट में रिटर्न जनरेट कर रहा है तो सबके लिए विन विन है, क्योंकि प्रमोटर्स की भी शेयर की वैल्यू बढ़ रही है और इन्वेस्टर्स की भी वैल्यू बढ़ रही है। Yes. Other participants, if you want to ask anything, is good opportunity to discuss. आई थिंक महेश जी से जब तक एक क्वेश्चन नहीं आया, वैलिडेशन नहीं हुई कि सेशन ठीक था। नहीं, महेश जी तो लास्ट में है। महेश जी लास्ट। प्लीज सर। हाँ, नितिन जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? कोई भी? हाँ नितिन जी, आपका अनम्यूट कर लीजिए। आप I mean, anybody wants to ask, they can unmute their mic. Ashok ji, the fact is that the presentation was so lucid. He has made the journey so comfortable. So people नहीं, have पूरा been लाइवली था और उन्होंने अच्छे ढंग से, और स्पेशली आई लाइक दिस लैंग्वेज ना, जो स्टॉक मार्केट की बात करो तो यही लैंग्वेज होनी चाहिए। correct and with lot of practical input and practical example. Yes. रजत जी, एक छोटा सा सवाल था कि सर ये जो प्री आईपीओ एक्सपेंसेस होते हैं तो वो जनरली क्या होता है, प्रमोटर बोलता है कि बहुत सारा बड़ा एक्सपेंसेस है, 50 लाख रुपया होगा या 60 लाख अभी वो खर्चा करे, फिर वो सब्सक्राइब होगा कि नहीं होगा। तो वेदर जो इन्फॉर्म इन्वेस्टर्स का एक जो कॉन्सेप्ट है अपने यहाँ, जो एसएमई एक्सचेंज में है बट मेन बोर्ड पे नहीं है, तो ये कैसे हम उनको एक मतलब वो दे सकते हैं प्रमोटर को कि भाई नहीं, आप जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो वैलिड एक्सपेंसेस है, थिंग्स विल बी इन प्लेस आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आपको ये पैसा मिल जाएगा। अभी आईपीओ प्रोसेस 1 साल चलता है और उसमें अगर वो नहीं कर पाया, उसको विड्रॉ करना पड़ा, तो ये एक परसेप्शन थोड़ा सा क्या है ना, वो तकलीफ देता है। ये एक पार्ट है। दूसरा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, क्योंकि हर एक कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कमिटी बनानी पड़ती है और वो 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है कि छोटी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिलते नहीं जो वो स्ट्रेंथ वाले हों, कि मतलब वो तो घर के ही लोग बना देंगे तो उसका फायदा नहीं है। तो हाउ टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम बाय अ मर्चेंट बैंकर? तो आई थिंक सर इसमें मर्चेंट बैंकर से ज्यादा ना रोल मुझे लगता है अपने प्रोफेशनल कम्युनिटी का है। आई थिंक नितिन जी ने मैसेज किया, उनका ऑडियो वर्क नहीं कर रहा। सर कोई बात नहीं, आई थिंक मतलब कुछ भी हो तो आप अशोक जी के थ्रू बात कर लीजिएगा, मतलब कुछ 1-to-1 डिस्कशन हो तो। कमिंग टू राजेश भाई क्वेश्चन, तो सर इसमें है ना, मुझे लगता है कि मर्चेंट बैंकर से ज्यादा रोल अपने प्रोफेशनल कम्युनिटी का है। फॉर एग्जाम्पल हम बैंक के अंदर जब प्रपोजल देते हैं तो भी हम बैंक के चार्जेस और प्रोसेसिंग चार्जेस पहले अपफ्रंट खर्च होते हैं, उसके बाद भी आपका प्रपोजल पास होगा या नहीं होगा नहीं पता, बट समहाउ प्रमोटर उस बात को तो एक्सेप्ट कर लेता है कि यार बैंक में फाइल नहीं आगे बढ़ी तो नहीं बढ़ी यार, अब क्या करें, वो पैसे लग गए जो लग गए। बट जैसे आईपीओ की तरफ उसका ध्यान आता है, उसको लगता है कि यार देखो आईपीओ तो क्या है, मतलब मेरे एक तरह से मेरे ससुराल जैसा है कि मैं जाऊंगा तो लिफाफा लेके आऊंगा। मतलब अगर मैं इसको अपफ्रंट थोड़ा सा आपसे बात करूं, अगर हम उसका ओरिएंटेशन ये सेट करेंगे, देखो यार आईपीओ है ना इज मोर वारंटिंग। बैंक हो सकता है आपको पैसा दे दे, बैंक ने इंडिया में 1.5 लाख कंपनीज को फंड कर रखा है, बट एनएससी में से 1600 कंपनीज लिस्टेड है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी में वर्थ है आईपीओ मार्केट के इन्वेस्टर को सेटिस्फाई करने की, तब तो आप खर्चा करो। मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि भाई मैं आपको कन्विंस करूं कि यार पहले खर्चा कर लो जी, हो जाएगा आपका काम, तो मैं लाऊं। मतलब व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज ये प्रमोटर का थोड़ा नोशन तोड़ना पड़ेगा कि भाई आप बैंक में जब फाइल देते हो तो कोई गारंटी देता है क्या बैंक की, भाई आपने फाइल जमा कराई है मैं आपको लोन अप्रूव करूंगा। तो आईपीओ की मार्केट वैसा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आईपीओ के अंदर जब आप थोड़ी भी पैसे खर्चा करते हो तो आपको अपनी कंपनी का एक बहुत बड़ा सेल्फ असेसमेंट होता है। तो एटलीस्ट वो प्रमोटर को एक रियलिटी चेक होगा कि आज 2 साल बाद 3 साल बाद जीवन में कभी भी मैं आईपीओ लायक बनूंगा या नहीं बनूंगा जी। तो राजेश जी उसको बता सकते हैं कि देखो भाई अब ये सिचुएशन है कि अगर तुम्हारे बोर्ड पे कोई एक क्रेडिबल आदमी आना नहीं चाहता, इसमें तुम्हारी कंपनी को कोई क्रेडिबल मानता ही नहीं है, तो फिर तुम इन्वेस्टर को जाके क्या बात करोगे।
तो या तो तुम आईपीओ में आना चाहते हो तो 2 साल मेरी सर्विसेज लो, मैं तुमको बताऊंगा कंपनी को क्रेडिबल कैसे बनाते हैं। उसके बाद तुमको अच्छा सीएफओ भी ज्वाइन करेगा, तुमको अच्छा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी मिलेगा और आईपीओ भी लेके आएंगे। बट आप तैयारी तो करो। सो इट इज नॉट लाइक कीपिंग योर कार्ड बिफोर द हॉर्स कि पहले आप मुझे गारंटी दे दो मैं खर्चा करूंगा। भाई ऐसा तो आपने अपने बच्चे को भी नहीं बोला कि यार तू मेरा ध्यान रखेगा तो मैं तेरे को पढ़ाऊं। तूने पूरी जिंदगी भर कमाई लगा दी और 25 साल बाद उसने तेरे को घर से निकाल दिया, अब तू क्या कर सकता है इसमें। So I think my point is to keep it very humorous for everybody that we have to actually set the context in a way that as a chartered accountant, it is our duty to present your company how it is, or otherwise we can also help to improve you. But we are not somebody as a Reserve Bank of India that guarantees you that यार कि तू एक आईपीओ काम देगा तो मैं आईपीओ लाके मानूंगा तेरा। सबसे ज्यादा कंपनी का नुकसान इसी वजह से हुआ है क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटली क्या है, एक तरीके की डील काटनी चाहिए। मर्चेंट बैंकर को बोला यार तुम देखो आईपीओ लाओ तो मैं तुमको काम देता हूँ। मर्चेंट बैंकर ने बोला यार इसको आप समझ में तो आता नहीं है तो ऐसी बात समझेगा, तो ठीक है इसको प्रॉमिस कर दो आईपीओ कैसे भरवाना है वो तो मैं करवा लूंगा। सस्टेन करेगा या नहीं करेगा आईपीओ उसके ऊपर ध्यान ही नहीं है प्रमोटर का। सो यहाँ पे अपना रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि मर्चेंट बैंकर, मतलब मैं खुद मर्चेंट बैंकर होते हुए बोल रहा हूँ कि मैं तो बहुत ट्रांजेक्शनल माइंडसेट से देखता हूँ चीजों को। कंपनी आएगी रेडी है तो मैं हाँ करूंगा, मैं कोई पेशेंस वेशन नहीं लगा सकता था आपके साथ साल भर तो ना मैं काम करूंगा। मेरे पास तो 10 कंपनियां जो रेडी है काम करने के लिए। बट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम वो पेशेंस रख सकते हैं जब एक कंपनी के साथ में हम 12 महीने एडवाइस करें, उसको बोले भैया महीने के 2 लाख रुपए तू मुझको दे और फिर मैं तेरी कंपनी को बताता हूँ 100 करोड़ रुपए मार्केट से कैसे हम ले सकते हैं। दैट्स वेयर एक्चुअली द पॉइंट इज, वहीं पर रोल है। अदरवाइज कंपनी ऐसे ही रहेंगी, मतलब दे विल ऑलवेज बी टेंड टू बी ट्रांजेक्शनल, क्या फटाफट हमको बॉम्बे ले चलो 4 मर्चेंट बैंकर से मिला दो। आपको ये पता ना लगाना पड़ेगा यार तू पहले मेरे 6 क्वेश्चन का जवाब दे, मर्चेंट बैंकर से मैं कल मिला दूंगा, तू बोलेगा तो मैं अहमदाबाद बुला दूंगा। So I would put it that way. So that's where actually we also come out from the shoes of only a, let's say, a agency connecting with a merchant banker rather than owner of the process. तो आई थिंक वो आपको देखना चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आसानी से मिलते हैं कंपनी का अगर अच्छा पेडिग्री है तो। आई होप सर आपका क्वेश्चन एड्रेस हुआ होगा। मतलब इसका एक्चुअल आंसर यही है, मैं उसको कितना भी गोल घुमा लूँ वो एक्चुअली बात ये निकलेगी। हमको एक बार क्लाइंट को ये सेट करनी पड़ेगी टोन की यार अल्टीमेटली तू अपने हाउस को ऑर्डर में कर। और हाउस कैसे ऑर्डर करना है ऐसा नहीं मैं सिर्फ ज्ञान दे रहा हूँ, मैं बता सकता हूँ वो कैसे कर सकते हैं। बट यू हैव टू बियर दैट पेशेंस, यू हैव टू स्पेंड दैट अमाउंट, देन ओनली इट हैपेंस। आज वो 25-30 लाख रुपए की प्रमोटर बात करता है, मैं बोलता हूँ आपके घर के बाहर तो 3 ऑडी खड़ी है और 5 ऑडी जो आपके बाहर खड़ी हुई है वो सारी आपने कंपनी की बुक्स पे ले रखी है। तो अगर आप में इतने एथिक्स और उसका आप ये जो मुझसे बातें कर रहे हो तो आप पर्सनल यहाँ पे शिफ्ट कर लो ना अपनी गाड़ियां। कंपनी क्यों डेप्रिसिएशन बियर कर रही है उसका, कंपनी ने क्यों लोन ले रखा है उसका। तो आप एक तरफ तो 5 गाड़ियां पर्सनल यूज की कंपनी की बुक्स पे ले रहे हो और मुझसे बोल रहे हो कि 25 लाख रुपए का चेक तब दूंगा जब आईपीओ गारंटी करो। यार ये कैसी बात है। हाँ विजा विज एक प्रमोटर है जो एथिकली एब्सोल्यूट क्लियर है, उसने कभी अपने अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं करी। थोड़ा बहुत तो चलो पैसा वैसा सब करते ही हैं। वो मुझसे एक सवाल करे कि यार देखो आप गारंटी दो कॉन्फिडेंस दो तब तो मैं आगे बढ़ूँ, उसको मैं फिर डेफिनेटली एक्सटेंडेड आर्म दूंगा। मैं उसको बोलूंगा ठीक है चलो आपके साथ मेरी डील है कि आपसे आईपीओ से पहले 1 रुपया नहीं लूंगा, आईपीओ के ऊपर जाओ घंटी बजाओ तो मुझे पैसे दे देना। बट आई कांट गिव दिस डील टू एवरीबॉडी। इफ दैट कंपनी डिजर्व्स इट आई विल डेफिनेटली गिव इट। मतलब मैं मनी माइंडेड नहीं हूँ, मैंने काफी ऐसी डील्स करी है। अशोक जी जानते शायद हमारी पहले बात हुई है, मैंने काफी कंपनीज को ऑफर दिया कि यार ठीक है आपको कंसर्न है ना आईपीओ मार्केट को लेके, आप आईपीओ कंप्लीट कर लो, जब एनएससी में घंटी बजाओगे उस दिन चेक दे देना मेरे को कॉन्फिडेंस है आप। आई थिंक दिस इज हाउ वी कैन डू। यस अशोक जी, आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चंस या कुछ और। अशोक जी। हाँ हाँ जी सर, मतलब हेलो यस हाँ कोई और जी, मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ आ रही हाँ, है महेश जी। सैयद जी इसी कंटिन्यूएशन में जैसे एसएमई प्लेटफॉर्म तो आजकल सक्सेसफुल उतने नहीं है, ट्रेडिंग वगैरह फ्रिक्वेंटली होती नहीं है, तो लोगों बाग को पार्टीज को अच्छी पार्टीज को यही सजेस्ट करना अच्छा कि 2 साल की पूरी तैयारी कर लो। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम भी 2 साल के लिए मिल जाएगा, तो बहुत अच्छा सब पूरा सेटअप करके मेन बोर्ड्स में ही जाओ तो ज्यादा बेटर है मेरे ख्याल से, अपनी पूरी तैयारी के साथ में, क्योंकि फिर वो माइग्रेशन का सब प्रॉब्लम रहता है जस्ट टू सेव द एक्सपेंसेस। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? मेरे ख्याल से तो मेन बोर्ड्स में जाना ज्यादा बेटर है। 2 साल वेट करें, अच्छे से कंपनी को ग्रूम करें, प्रमोटर को ग्रूम करें, बाद में मेन बोर्ड्स में जावें। आपका क्या कहना है? आई थिंक मतलब काफी हद तक आप ठीक बोल रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं परसों एक कंपनी से मिला था बॉम्बे में ही, और समाउ वो भी यही थॉट में थे कि भाई मैं अभी एसएमई पे आईपीओ नहीं लाता हूँ, मैं 2 साल बाद मैं मेन बोर्ड पे आईपीओ लेके आऊंगा।
तो मैंने बोला अभी आपका टर्नओवर कितना है? बोला अभी मेरा 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। मैंने भाई 2 साल में कितना हो जाएगा? बोले पैसा अगर नहीं मिलेगा तो 120 करोड़ रुपए 130 करोड़ रुपए हो जाएगा। बोले भाई आप आईटी सेक्टर की कंपनी हो, 100-120 करोड़ रुपए के टर्नओवर पे भी आप मतलब 9-10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा लोगे। बोला हाँ इतना तो कमा लेंगे। मतलब आप 2 साल बाद फिर भी मेन बोर्ड लायक नहीं बनोगे। अगर आप मेन बोर्ड पे आने के समय 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर लो तब तो ठीक है, चलो भाई 20 टाइम्स का मल्टीपल है, आप आईटी सेक्टर की कंपनी हो तो 1000 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन होगा तो 250 करोड़ रुपए का आईपीओ आ जाएगा। बट आप 2 साल में भी वो नहीं बन रहे हो जो मेन बोर्ड की आवश्यकता है। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अभी एसएमई आईपीओ पे भी आ सकते हो। 2 साल आप इसको प्लेटफॉर्म को देखो, परसीव करो एज अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर यू। कंप्लायंस से समझो, इन्वेस्टर्स के बीच में अपनी विजिबिलिटी क्रिएट करो। आप जो बोल रहे हो कि यार अभी मेरे को पैसा नहीं मिलता है तो भी मैं 50 करोड़ रुपए से 120 करोड़ रुपए होगा, तो थोड़ा बहुत पैसा भी मिलेगा तो आप 120 से लेकर 150 हो जाना। कंपनी तो सेम वही है। अगर आपने 150 करोड़ रुपए कर लिया टर्नओवर और प्रॉफिटेबिलिटी आपकी 25 करोड़ रुपए हो गई, तो आज आप 2 लाख रुपए की फीस देके एक्सचेंज को माइग्रेट कर लोगे। मेन बोर्ड पे आप आईपीओ आते तो मर्चेंट बैंकर पहले पेन चलाने का 1 करोड़ रुपए ले लेता। तो आप 150 करोड़ रुपए की जब मेन बोर्ड पे बनोगे कंपनी और 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाओगे, तो दिस एन अपॉर्चुनिटी कि अब आपकी फंड रेजिंग कॉस्ट नेक्स्ट टाइम बहुत छोटी पड़ेगी। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ महेश जी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि एक कंपनी है मेरी जो 2 साल उसको वेट कराने के बाद में वो मेन बोर्ड लायक बन जाएगी, उसके कम से कम मतलब 35 से 50 करोड़ रुपए प्रॉफिटेबिलिटी तो आ जाएगी, तब तो अपन को ये रास्ता डेफिनेटली सजेस्ट करना चाहिए कि आप वेट करो मेन बोर्ड पे आना। और आपको लगता है कि यार ये तब भी इतनी बड़ी नहीं बनेगी, क्योंकि जिस दिन आप ये एडवाइस देकर उसको ऑफिस से निकलेंगे ना, वो तो फिर वापस से अपने उसी चीजों में लग जाएगी, ये प्रॉफिट बचाओ, खर्चे बुक कर लो, ये सब कर लो, और प्रॉफिट क्यों देना है भाई। तो मैं ये बोलूंगा कि उस कंपनी के लिए फिर भी बेटर एडवाइस है कि आप उसको एसएमई पे आइडिया प्रपोज कर सकते हो लिस्टिंग का, क्योंकि 2 साल जब वो ग्रोथ करेगी ना लिस्टेड होते हुए, तो उसके वैल्यूएशन ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई होंगे, विज़ जो 2 साल बाद फ्रेश आएगी, क्योंकि तब भी वो इतनी बड़ी नहीं बन जाएगी मेन बोर्ड पे आ सके। तो आई वुड पुट इट दैट वे कि आप क्लाइंट टू क्लाइंट डिसाइड करिए, बट एसएमई का एक अच्छा रूट है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने इसको किस तरह से परस्यू किया, वो दैट्स अ सेकंड पॉइंट। बट आज अगर एक कंपनी 1-2 लाख रुपए के खर्चे में मेन बोर्ड पर शिफ्ट हो रही है, जहाँ पे एक इनिशियल लेवल पे एक्सपेंस आईपीओ लाने का बहुत बड़ा है, और यहाँ पे आप कंप्लायंस भी सीख रहे हो, विजिबिलिटी भी मिल रही है, और एक्सचेंज आपको वो सारे मेथोडोलॉजीज दे रहा है वैल्यूएशन क्रिएट करने के जो मेन बोर्ड की कंपनी को है। आप सारे अपने अनाउंसमेंट्स, रिजल्ट, प्रेजेंटेशन रिलीज कर सकते हो, आप इन्वेस्टर से मीटिंग चालू रख सकते हो, आप एक अच्छे सीएफओ को रखो, आप अपने ऑडिटर से एडवाइस लो कि हम इन्वेस्टर के साथ एंगेजमेंट कैसे करें, सारे रूट्स आपके पास अवेलेबल है। हमने ऐसी कंपनीज को भी एडवाइस कर रहे हैं जहाँ एसएमई पे लिस्टेड है बट वो क्वार्टरली ऑडिट्स करती है। हम उनको बोलते हैं यार आप मेन बोर्ड पे आने वाले हो ना, तो आप अभी से क्वार्टरली ऑडिट की आदत डालो। आप ऐसे में सोचो कि जब मैं मेन बोर्ड पे आऊंगा तो मैं क्वार्टरली ऑडिट्स करूंगा। आप क्वार्टरली अपडेट्स दो, आपके ऑडिटर को लेट से इतना इक्विप होने दो कि वो क्वार्टरली ऑडिट्स के लिए आपकी कंपनी को रेडी कर सके, फिर आप मेन बोर्ड पे आ जाना। तो मुझे लगता है कि एसएमई ना एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड है किसी कंपनी के लिए, वैल्यू क्रिएट करने के लिए, विजिबिलिटी क्रिएट करने के लिए, कंप्लायंस को समझने के लिए। अदरवाइज वो मेन बोर्ड पे आने के बाद 2 साल तक तो हाथ पैर ही मारती रहेगी, समझ में नहीं आएगा कंप्लायंस कैसे संभालें। तो आई वुड पुट इट दैट वे, या ऐसा देखें। हाँ, आई एग्री रजत जी, क्योंकि कल्चर बिल्ट हो जाता है। Rajat ji, one small point, like you rightly said that I don't know that what is the perception. So the perception for SME exchange have been very bad so far. I mean, I really have no practical experience, so I don't want to make any comment. But informally, we are sharing in our closed door of this meeting that people have the perception is that it is all stage managed, so there is no real participation by any investor, and no company has raised ever any money, really speaking. This is the kind of perception. So do you really still I mean strongly say that no, it is not at all a right thing? There are companies who have been able to raise 25-50 crore रुपया रियल में promoters को मिला है क्या? Right. I think काफी मतलब practical question है सर। I मतलब I understand where you are coming from. So I would put it that way सर। इसको मतलब it is ऐसे प्लेटफॉर्म को मैं एक तरीके से IIM अहमदाबाद की नजर से देखता हूँ। मतलब 50 के बच्चे वाला हर बच्चे हर सेशन के अंदर 150 लोग एडमिशन लेते हैं IIM कलकत्ता में या IIM अहमदाबाद में, बट सबका तो करोड़ रुपए का पैकेज नहीं लगता, एक का करोड़ का लगेगा, बाकी का ऑन एन एवरेज 25-50 लाख रुपए का ही लगेगा। एसएमई के ऊपर आप किस परसेप्शन से या किस थॉट से लिस्टिंग कर रहे हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कंपनीज ने ये परसीव किया कि यार अभी आईपीओ की तेजी चल रही है तो चलो अपन तो आईपीओ लेके आ जाओ और अपने जो पैसा मिलता है वो ले लो, और फिर बाकी तो शेयर मार्केट जाएगा, इन्वेस्टर जाएगा चूल्हे में, अपन तो अपना घर सजा लेंगे। तो आई वुड से कि जहाँ पे इन तरह की कंपनीज का नंबर बड़ा हुआ, जिसने बिना किसी एडवाइजरी के, बिना किसी 2-3 साल के ग्रोथ प्लान के अपनी आईपीओ की जर्नी स्टार्ट करी,
उसने उस प्लेटफॉर्म को खराब किया, आई वुड पुट इट दैट वे। बट मुझे आज भी ऐसा लगता है हम काफी कंपनीज को गाइड कर रहे हैं, मैं एग्जांपल्स भी देके आपको बता सकता हूँ जहाँ पे एसएमई पे कंपनी लिस्ट हुई, 3 साल का क्लियर रोड मैप था, और एसएमई पे हम लिस्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि 3 साल में हमको जहाँ पहुंचना है उसके लिए कैपिटल मार्केट में आज एंट्री करनी जरूरी है, इसलिए वो लिस्ट हुई। इन्होंने अच्छी वेल्थ क्रिएट करी। मतलब आई थिंक जो मैं अभी कंपनी का एग्जांपल आपको दे रहा था, राघव प्रोडक्टिविटी, ये जयपुर बेस्ड कंपनी है, एसएमई पे इसका 2017 में आईपीओ आया था, छोटा सा आईपीओ था, और आई थिंक उस टाइम कोई बहुत ज्यादा ऐसा हल्ला गुल्ला भी नहीं था, शांति से लिस्ट हुए। 2-3 साल इन्होंने अपना बिजनेस पे फोकस किया। 2019 में एक पहले इन्वेस्टर ने इनको नोटिस किया, जब ये मेन बोर्ड पे शिफ्ट हुए तो प्रोफेशनल फंड रेजिंग के राउंड इन्होंने स्टार्ट किए। मतलब ड्रैमिंग मास बनाते हैं, हमारे क्लाइंट हैं, 70 करोड़ रुपए के टर्नओवर पे 9.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। जब ये मेन बोर्ड पे शिफ्ट हुए तो इन्वेस्टर्स ने नोटिस किया कि यार जहाँ पूरा मार्केट रैमिंग मास का एकदम फुटकर बिकता है, कोई ब्रांड नहीं है, राघव इज द ओनली कंपनी जिसने ब्रांडिंग डेवलप कर ली रैमिंग मास के प्रोडक्ट में। ये इंडक्शन फंडनेस और सेकेंडरी फंडनेस में ये जाता है रैमिंग मास एज ए कंज्यूमेबल स्टील सेक्टर के अंदर। तो जब स्टील सेक्टर चला तो लोगों ने देखा और कौन सी कंपनी है जो स्टील सेक्टर को कंट्रीब्यूट कर रही है, तो रीफैक्ट्री का मटेरियल है राघव, वो भी नजर में आया। 70 करोड़ रुपए के टर्नओवर पे डेट फ्री कंपनी, 9 करोड़ रुपए प्रॉफिट, लोगों ने यार तो बड़े बढ़िया कंपनी है। हमने इसके साथ 6-7 महीने काम किया, इंटीग्रेट किया, एमआई सिस्टम क्रिएट किए, बोर्ड को प्रिपेयर किया, इन्वेस्टमेंट नैरेटिव सेट किया। जनवरी में आई थिंक वही कंपनी जो एसएमई में शुरू हुई थी। हेलो, मेरा ऑडियो अवेलेबल, मतलब अशोक जी सुनाई दे रहा है? अभी आ रही है, बीच में रुक गया था, अभी आ रहा है। राइट, सो आई थिंक वही कंपनी महेश्वरी जी जनवरी के अंदर ये 14 करोड़ रुपए का एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इसमें आया, जिसमें रमेश दमानी, मधु केला की फैमिली ने, आलन बागड़ की फैमिली ने पार्टिसिपेट किया। और आई थिंक अभी 2 हफ्ते पहले इसके अंदर एक और मार्केट इन्वेस्टर ने, जो मतलब हम सबको सभी नोन है, राकेश झुंझुनवाला, उन्होंने भी 30 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट लिया है। सो अगेन वो छोटी कंपनी, बट इट कुड डू दैट। अदरवाइज मैं आज भी सोचूं तो 80 करोड़ रुपए के टर्नओवर पे राघव मेन बोर्ड पे लिस्ट हो ही नहीं सकती। या फिर आप एक कंपनी देख सकते हैं, लेट्स से गुजरात की एक कंपनी है पार ड्रग्स, उनसे भी मतलब वी आर इन गुड टर्म्स विद द प्रमोटर, मेरे एक पार्टनर उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो इट्स अ गुड कंपनी, 70% एपीआई बनाते हैं, 30% केमिकल्स बनाते हैं, और करीब करीब उन्होंने शायद आई थिंक 65 करोड़ रुपए के टर्नओवर पे 11 करोड़ रुपए का पैड दिया है इस बार। और अगर आप उसका एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि यार ये आईपीओ लेके आए थे 4-4.5 करोड़ रुपए का, कितने प्राइस पे आया था, अभी क्या भाव चल रहा है मैं इस पे नहीं कमेंट करता हूँ कभी, बट आईपीओ लेके आए तब से लेके इन्होंने अपनी कैपेसिटी को 3x कर लिया। मतलब जब आए थे 4200 एमटीपीए की कैपेसिटी थी, अभी 9700 टन की कैपेसिटी हो गई, 2x से भी ज्यादा। मार्जिन इंप्रूव हो गए, अच्छे गवर्नेंस प्रैक्टिस है, लिटरली काइंड ऑफ डेट फ्री कंपनी है। एपीआई और फार्मा के अंदर, केमिकल्स के अंदर अच्छा हवा चल रही है, मार्केट में सेक्टर की पकड़ है, और चाइना के अंदर जो शिफ्ट हुई मतलब सप्लाई चेन, उसकी वजह से इनका अच्छा बिजनेस मिल रहा है। एंटासिड के अंदर ये बनाते हैं फॉर्मुलेशन। तो आज ये कंपनी जब मेन बोर्ड पर आएगी तो आई वुड बिलीव दैट इट वुड बी फिजिबल नैनो कैप कंपनी। तो ये एसएमई के थ्रू ही पॉसिबल हुआ। तो आई वुड पुट इट दैट वे कि किस इंटेंशन से लोगों ने एसएमई प्लेटफॉर्म को यूज किया। सेम पैरामीटर मेन बोर्ड पे भी है। मेन बोर्ड पे भी आप देखेंगे तो एनएससी पे 1700 कंपनीज हैं, बट 1700 कंपनी में से आप हो सकता है 250-300 कंपनी के बियॉन्ड आप नहीं सोचते हो कि कोई कंपनी पैसा लगाने लायक है। बट लार्जली क्या है, वो शायद हो सकता है एसएमई में ज्यादा हो गया हो, ऐसे से वो नजर में ज्यादा आ गया। बट मुझे लगता है एसएमई मेन बोर्ड दोनों में सेम मैट्रिक्स हैं। बट एज ए कंपनी या एज ए प्रोफेशनल, अगर मैं अपनी कंपनी को लॉन्ग टर्म विजन के साथ एडवाइस कर रहा हूँ तो एसएमई मुझे आज भी लगता है इज अ फैंटास्टिक टूल टू गेट इनटू द कैपिटल मार्केट्स। आईपीओ में क्या इनिशियली कुछ खर्चा वर्चा नहीं है, 2 साल में आप माइग्रेट हो जाते हो, सारे आपको टूल्स एंड वो अवेलेबल है, कंप्लायंस लिमिटेड है, रिकरिंग कॉस्ट लिमिटेड है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट। बट जैसे बगैरा जब बोल रहे थे कि अगर कोई कंपनी बड़ी बन सकती है तो फिर उसको बोलना चाहिए तो शांति रख, फिर 2 साल बाद में मेन बोर्ड पे आ जाएंगे, ताकि वो एसएमई को ओवरहैंग ना रहे। ठीक है, एनीबडी एल्स, बिकॉज़ वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। So anybody want to ask? So I think friends, it's time to conclude. It was a great presentation and everything went very well. And the way Rajat ji has explained every aspect of capital raising, it is very fruitful and it will help us a lot. Now I will request our other core member, CA Mahesh Bagaria ji, to propose with the vote of thanks. Bagaria ji. Thank you, Ashok ji, for giving me the opportunity for a vote of thanks on behalf of WIRC. Today's learned speaker, Rajat ji Bath.
which has already come earlier once in WRC. He has explained in very lucid manner the entire gamut of unlocking the value of the company and fundraising through equity in various ways. He has also covered for new companies, unlisted companies and listed companies, how to prepare for IPO and fundraising for existing listed companies through various ways. He also informed about various opportunities for CA to advise companies on various aspects for 1 to 2 years to make them ready for IPO. That's a great opportunity for the chartered accountants and auditors. Friends, so many questions. I think the best part of the speech, he has covered everything, but I will say that 1 hour was his presentation and 1 hour was the interaction, which very less I see any of the meeting. So this is a very good part. All the members, those who are here, have very actively participated, and Rajat ji very well has replied all the queries and doubts of our members. Friends, overall, it was very good session, and we all are got very much benefited from his expertise into the subject. I propose a hearty word of thanks on behalf of WRC to Rajat ji Baj for today's sparing his valuable time and enlightening us on the subject. Thank you. So, also thanks to Ashok ji, Maheshwari ji and speaker के साथ में मेरे ऑडियंस जिन्होंने इतना अच्छा पार्टिसिपेशन किया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद WRC की तरफ से. अशोक जी. हाँ, thank you Bagaria ji for your vote of thanks. It was great, Rajat ji. So with this, I'll thank each and every participant with a request that हम हमेशा अच्छे स्पीकर लेके आते हैं, आप सब आइए इसके अंदर, and we should deliberate in length. So Rajat ji, it was great. आपका ये जो भी आपने expertise हमको दी है, it will be very helpful, and we'll remain in touch with you. We'll make use of it. My pleasure. Thank you, Ashok ji. Thank you, Maheshwari ji, Rajesh ji, Pankaj Saab, Nitin ji, everybody, sir. Mahesh ji, thank you. I think thank you for giving opportunity for young people like us who can come and Great, talk on a platform like yours. I think कुछ कर सकते हैं आगे प्लानिंग. अगर आपने कोई स्पेसिफिक किसी टूल या किसी टेक्निक पे बात करना है, राइट, या कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, we can do a separate session. उसके अलावा मतलब I am there LinkedIn. I think Mahesh, we should call him in the JB Nagar also. Take his number. Rajat ji, share your number. We will invite you in JB Nagar also. He has my I'll do that. हाँ जी. अशोक जी के पास में डिटेल्स है सर, आप बता दीजिए. Will मतलब more than yes, I'll coordinate. Yes, the speaker that he explained, it will benefit each and everyone. Yes, yes. मतलब कुछ भी अगर सीखा है तो एटलीस्ट फेलो मेंबर से शेयर करना चाहिए. दैट इज माय प्राइमरी ड्यूटी. दैट्स व्हाई आई फील. और मैं कोशिश करता हूं कि मतलब मैं गोल गोल बातें ना करूं. आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. नहीं, वही अच्छी बात है रजत जी, वही सबसे अच्छी बात है. और इसमें आपने जो बताया ना कि छोटे से कैसे बड़ा बना जाए, इस वजह से मेरी वाइफ से लड़ाई भी बहुत होती है कि मैं गोल गोल बात नहीं कर पाता. बट ठीक है, आई एम हैप्पी. नहीं, वो तो सबके साथ होता है. ओके, अल्टीमेटली अगर आप लोग कोई छुट्टी के दिन 2 घंटे स्पेयर कर रहे हो तो सेशन से कुछ मिलना चाहिए. दैट्स द ओनली पॉइंट. That's fair. If you don't get anything from the session, then and nobody does justice to anybody. Yes. True. Thank you. Thank you, everyone. Thank you all of you. Thanks for joining. Bye. Bye. Thank you, Bansal ji. Thank you, Rajesh. Thank you, Mahesh. Thank you. Bye.